Moiz is here. उर्फ शुमाइला भट्टी उर्फ पुदीना चटनी, क्योंकि जब भी कोई पुदीना चटनी कहता है तो वो कहती है नहीं पुदीना चटनी with a pay. It's with a pay, not with a pay. So I'm not going to make that mistake. And Moiz and I met at T2F when Areeb Azhar called us for a talk. And just the most articulate person. And then I just went and devoured all of your content. And I was just telling him as well, I feel like I'm repeating myself because you just heard me say so. The speed at which you communicate and the connectedness of your thoughts was very impressive to me. Thank you. And since then, और ये public health का क्या चक्कर है ये? यार बेसिकली गरीब बच्चों की यही दास्तान होती है ना, या आपको इंजीनियर बना देते हैं या फौज में भेज देते हैं या डॉक्टर बनना होता है. हाँ. And I grew up in fucking Abbottabad, for crying out loud. वहाँ पे तो लिटरली ख्वाब ही आपके यतीन होते हैं. That's the extent of our dreams. मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा, मैं बड़ा होकर इंजीनियर बनूंगा, मैं बड़ा होकर आर्मी में जाऊंगा. एंड बिकॉज मैं FSC वाला बच्चा हूँ तो डॉक्टर और इंजीनियर के बीच में वर्सेस हो जाता है. सो मेरा आर्मी में भी हो गया 1-to-1 लॉन्ग कोर्स, मेरा मेडिकल कॉलेज में भी हो गया, और मेरा लम्स में भी हो गया, मेरा IBA में भी हो गया. लेकिन जाहिर है किधर जाएंगे आप? डॉक्टर की तरफ. सो आई हेटेड मेडिकल स्कूल. आई वाज रियली गुड एट इट. How many years is it? 5 years, but it like takes almost 6 in Pakistan, state वाले जो हैं. So I went to med school. I hated it up until 4th year when this new subject was taught to us, community medicine. Okay. क्योंकि सबको बहुत बुरा लगता था और मुझे बहुत अच्छा लगता था because it was abstract and vague and substantial at the same time. Because it was out of the patient's body and into the society and into the environment. It does not ask the question, oh, what medicine do we give for this person's fever? It is like, why do so many people have it in the first place? So that's like... Doesn't the germ theory or something like that come in at that point in time? So many. Like there are multiple theories of disease causation. Yeah, there's a web theory as well. वो पढ़ते हो. And it was very abstract. So everybody hates it when you've been in medical school for 3 years and it's your 4th. I loved it. And the other one that I liked was gynecology. Okay. और मेरा part 1 हुआ हुआ भी है, MRCOG. And this is, you're not being salacious when you say something like... No. I think gynecology के बाद specifically I can't look at vaginas the same way again. Specifically, but I'm generally a very good gynecologist. Abhi bhi, like I interact with a lot of... You are a gynecologist? No. As in like haven't completed my specialization. Okay. But yeah, I've done my first part, so I have a very good expertise in the matter as a public health specialist. I would like to put it that way. अब तो आड़ा पुत्र होवे डॉक्टर और आपके पास 2 ही ऑप्शंस हैं, पब्लिक हेल्थ या आते गायनेकोलॉजी. तो होते ना कि जी आपका बेटा किस चीज़ का डॉक्टर है, तो वो क्या बोलेंगे? तो मेरे घर वालों ने फिर मुझे बोल दिया कि लोग पूछेंगे कि तो असली फिर की दसिए. यार इतना ज़्यादा कन्फॉर्मिटी और फिर दूसरी तरफ बिल्कुल ही रिएक्टिव चीज़. मतलब कि हर चीज़ ऐसे लगता है लोग क्या कहेंगे ये कर लेना चाहिए. तो in your occupation you've completely followed that path. Yeah. But in your extracurricular activities you've not given a shit. Yeah, I think in this as well I've not given a shit. क्योंकि I think अगर आप एक जगह पे ज़रा से radical हो तो आप हर जगह पे थोड़े से radical हो ही जाते हो. So even as an academic, I'm very critical of public health and how public health functions. Like a lot of my papers have been कि आपने बस एक गोरों ने अपना एक सेवियर कॉम्प्लेक्स बना लिया हुआ कि गरीब लोग चूती हैं, पाकिस्तान के लोग गंदे हैं और हमने इन सबको फिक्स करना है. तो सोचने की बात ये है कि 14 अगस्त 1900 कब आज़ाद हुआ था पाकिस्तान? 47? हाँ, सॉरी. आई थिंक पता चल जाएगा लोगों को, देखने वालों को कि क्या उर्दू की गिनती मुझे तो नहीं आती. उर्दू की गिनती हमें भूल गए, हम बहुत बर्गर हैं. वी आर बर्गर्स. 1947. जबकि you hate burgers from what I recall from one of your podcasts. You don't like burgers. It's this. 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ. लंदन के अंदर ट्यूबें चल रही थी. अगर नहीं भी चल रही थी तो लोग वहाँ पे कमोडों में टट्टियाँ कर रहे थे. तो हमारे यहाँ कमोड क्यों नहीं बने? ये जो बरतानवी हमारे इतने अच्छे थे, वाह 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 वाह, जो हमें रेलवे पाकिस्तान से नवाज के गए और किस चीज़ से नहीं नवाज के गए. जिनकी मलका हमारा लाहौर डायमंड नेकलेस पहनती हैं, जो कि लाहौर किले से चुराया गया था. तो आप मुझे ये बताएं कि इन बरतानियों ने पाकिस्तान के अंदर कमोड क्यों नहीं बनाए लोगों के लिए? आपने स्क्वाटी पॉटी का सुना है? हाँ. तो पता तो ये यू हैव इट ना? Yeah. तो पता तो ये चल रहा है कि कमोड हमारी टट्टी करने के लिए हमारे लिए बेहतर नहीं है, वो इंडियन टॉयलेट्स बेहतर है. हाँ, और अगर आप गए हैं और आप अमेरिका से होके आए हुए हैं और अगर आप एनल सेक्स का शौकीन है, हाँ, तो भी आपको अमेरिकियों की एनल हाइजीन के बारे में बहुत कुछ पता चल जाएगा. वो तो मतलब कि वो टिश्यू पेपर के साथ without a Muslim there is actually a word for it. I think it's called dingleberries. Dingleberries, that's the word. Yeah, कि वो थोड़ी सी लगी रह जाती है. What a disgusting fucking like imagine this is how disgusting white people are and Americans are. वो अपने आप को civilization का सर चश्मा समझते हैं. जब हाथों से चावल खा रहे होते हैं तो कहते हैं it's so disgusting. तो वो बर्गर किस चीज से खाते हैं? पाँव से. So मुझसे नहीं होते यार, मुझसे नहीं गोरे बर्दाश्त होते. मेरी बस हो गई है.
इसलिए मैं अमेरिका भी वापस नहीं जा सकता मेरे ख्याल से। ये जो अंग्रेज़ों के खिलाफ रद्द अमल की कैफियत है आपके अंदर, ये हाँ। आपने तो कभी कॉलोनियल टाइम्स नहीं गुजारे यहाँ पे, तो ये कहाँ से आ रही है कैफियत? यार आई थिंक हम सब गुजार रहे हैं कॉलोनियल टाइम्स, इज जस्ट कि हम इतने शदीद तरीके से कॉलोनाइज हो चुके हुए थे कि हमें उसका एहसास ही नहीं हुआ। एंड देयर आर मोमेंट्स जब आपको उनका जाके एहसास होता है। एंड आई थिंक इट्स वेरी गुड फॉर पीपल टू ट्रैवल टू द यूएस एंड स्टे देयर फॉर अ वाइल। एंड इफ यू आर कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ व्हाट आई वुड से कल्चरल प्राइड इन अ गुड वे, कि आपको अपने कल्चर पर थोड़ा बहुत फ़ख्र है, तो फिर आपको नज़र आएगा कि अच्छा ये है ज़रा से रेसिस्ट, ये है ज़रा से इस्लामोफोबिक। और व्हेन आई से इस्लामोफोबिक, मच टू द चैग्रिन ऑफ माय एथियस्ट फ्रेंड्स, कि देयर इज नो सच थिंग एज दैट, देयर इज ओनली एंटी मुस्लिम बिगेटरी, आप जो भी टर्म इस्तेमाल करना चाहें, बोथ आर स्लाइटली What's this argument over nomenclature? I don't understand. Yeah, we'll get into that as well. लेकिन उनका है एक रेसिस्ट वन, इट्स बेसिकली स्टेम्स फ्रॉम वाइट सुप्रेमेसी ना। अब आप उसको लेबल जो भी देना चाहें, बात वही है कि जैसे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ चंगे, Yeah. और वो यूं है क्योंकि वो गोरे हैं और क्योंकि हम नहीं हैं, तो भाई फिर आप क्यों आए थे यहाँ पे हम पे कब्जा करना? क्यों हमारे हीरे चुरा के ले गए? वापस करें, हम जाहिलों के, हम गलीजों के, क्या मौत है आपको? हाँ. सो ये जो एक डिस्पोजिशन सी है ना हमारी, एक पैराडॉक्सिकल सी, कि ओ नो वाइट पीपल आर अमेजिंग एंड बाहर अब्रॉड, आप कहाँ से हैं जी? मैं अब्रॉड से आया हूँ। ये वाली कि जी हम बाहर होते हैं, अमेरिका से. अमेरिका से हम आए हैं, यूएस, इन कराची इट्स यूएस, वेरी Yeah. गुड, If you're यूएस sophisticated, it's और US. स्टेट्स, Or states. Yeah. या अब अमेरिका नहीं बोलते हम। तो फिर आपको एहसास हो जाता है थोड़ा बहुत कि नहीं, ये है जरा चुतियापन में। हाँ, है तो सही. I mean, मैं साउथ के अंदर पढ़ा था, फ्लोरिडा के अंदर, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा इनकाउंटर्स हुए थे इस तरह के. और तब पोस्ट सितंबर 11 था, तो मैं तो इस्तेमाल करता था. मैं उनको कहता था कि यार डोंट मैस विद मी, आई विल ब्लो यू अप. Oh yeah, a friend of And mine they did would that. get really scared. I would do that as well at a Yeah. club when I'm drunk and somebody comes and tries to flirt with me. तो मैं और मेरा पाकिस्तानी दोस्त, हम तो आगे से बचौदी शुरू कर देते थे। तो कहते कि where are you from? और हम कहते कि पाकिस्तान and अफगानिस्तान. He's Al Qaeda and I'm Taliban. Do you want to be blown up? Oh, that sounds thrilling. Absolutely. वो तो उनको काफी मजा आता होगा. जू मानी क्या ट्रिपल मानी, हमने तो नेक्स्ट लेवल के ऊपर ले गए कि आपने जो मतलब निकालना है हमने हर चीज आपको दे दिया. आप FIA को भी फोन कर सकते हैं, आप अपना नंबर भी दे सकते हैं. The options are limitless. Did you study in America or? Yes, I did my master's there. Masters? Yes. You've done your master. Do you have to do your masters to become a doctor? No, I did my MBBS, which is a doctor of medicine. Okay. Yeah, and then I went to the US for my master's in public health. अच्छी बात है ना, Damn. टेक्निकल नॉलेज मिल तो जाती है. proper academic हो. Yeah. And you're also a practicing doctor. No, I am a practicing public health practitioner. Okay. So my job is examining issues of public health importance, and anything of public health is importance is something that is affecting a lot of people, or is affecting people who are invisible to the traditional healthcare practice. So you must have had a ball this last year. Corona. यार I hate it now. नहीं, मेरे तो ख्याल से मेरी mental health बहुत ज़्यादा fuck हो गई है कोरोना की वजह से. यानी कि yeah, I did set up Pakistan and South Asia's first drive-through in Karachi. Okay. जिससे मुझे बहुत recognition मिला है, और recognition मिलने के बाद मुझे बोला कि आप खामोश होकर पीछे हो जाएं, ताकि बाकी लोगों को ज़्यादा recognition मिल सके. तो मैंने कहा हम पीछे हो जाते हैं, because I think they had issues with the fact that if I get too popular, people might research, Google my name and find out that, oh, I'm also a comedian and a drag practitioner. And ये इदारे को मसला था इस इमेज से. Yeah, kind of. कि शायद, maybe. But yeah, Where not is just the- Adara, I think just also the public health fraternity in its own way. But yeah, Corona has been quite, because I think we are the only organization that had a comprehensive training program, because people did not even know how to do NP swabs, nasopharyngeal, जिनसे टेस्ट किया जाता है. हाँ. मैंने by my hands only, I had to surge train over 500 people Okay. within 5 to 6 months. So that was quite Was it the one that goes all the way up to your brain, huh? Yes, that one. Is it supposed to go all the way up? It doesn't go up actually, it goes back. Yeah, the nose it is goes not up, in, the nose like is it back, goes yeah. in there, right? लेकिन अगर आपने मेरे हाथों के ट्रेन प्रोफेशनल से कराई हो, तो वो स्टार्ट में आपको एक्सप्लेन भी करते हैं और आखिर में थैंक यू भी बोलते हैं और सॉरी भी बोलते हैं दर्द का. हाँ. लेकिन वो वो लाहौर में नहीं है, वो सिंध में है सिर्फ. खैर है, मुझे वैसे ही थैंक यू सॉरी की आदतें नहीं है. मुझे तो बंदा चंड मार के चला जाए, लॉरी हूँ. मगर does it have to, like, I mean, shouldn't it just get some mucus and that's it? No, because that mucus is, एक आपके पास नेजल स्वैब है और एक आपके पास NP स्वैब है जो कि पीछे तक जाता है. Okay. इसमें देयर इज क्वाइट इतना आपके पास चांस So does it have to touch the mucous membranes and stuff the to? nasopharynx actually, क्योंकि वहाँ पे tonsils होते हैं, and the tonsils trap some of the viruses, so we have more surety of grabbing it from there. Okay. Yeah, so अगर nasal swab करना है वो इतना accurate नहीं होता. मेरा तो अभी तक नेगेटिव आता ही रहा है. So Even चलो, though I've this one gotten time I had all the symptoms. I couldn't taste, I was feeling like shit, I had body aches, I had dry cough. I get the test, I'm negative. What?
This is a long time ago. What are you Are you still हो paranoid? सकता है कि टेस्ट जरा गलत हो गया हो, क्या है ना? बात है? या बट लाइक डूड ऑनेस्टली आई नो आई एम अ पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल, जो लोग देख रहे हैं मैं आपको आंखों में आंखें डाल के वाली बात बोलना चाहता हूँ, खबरदार जो किसी ने इस वीडियो को मुआरफ करके कट करके बोला ये देखें पाकिस्तान के पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल्स क्या कर रहे हैं, आई एम रियली फकिंग ओवर कोरोना, लाइक मेरी बस हो चुकी हुई है, आई एम सो फकिंग डन विद इट. Thank God my parents aren't here. मैं तो no masker बन गया हूँ. अच्छा नहीं, आई डू वेयर अ मास्क व्हेन आई गो आउट. Yeah. एंड आई I वोर saw you दिस wearing a mask today. अ सीक्वेंस मास्क मैंने खरीदा जाके 200 रुपए का, सीक्वेंस लगे हुए थे, वेरी ग्लैमरस, और उससे मुझे ये कट पड़ गया. अच्छा ये मास्क से पड़ा है? हाँ, एक सीक्वेंस जो यहाँ पे मुझे यूं यूं करके चुभ रहा था, तो ओह. मुझे अपने खूबसूरती के तैश में एहसास नहीं हुआ. तो ये तो डर्मेटोलॉजिस्ट सही करेगा बोले ये वाला. नहीं यार, ये अल्लाह मियाँ, अल्लाह मियाँ. बॉडी की स्किन रीजनरेशन प्रॉपर्टीज. Although evolution, millions of years of evolution, and it's being able to cure itself. Absolutely. Yeah. I Whichever way often you want wonder to if look there's at it. in the future there would be like the way we track ourselves. ना अभी जिस तरह मैंने अभी एक मी बैंड 6 आई है Yeah. वो लगी है, वो ब्लड ऑक्सीमीटर भी उसके अंदर ही है. हाँ, तो ये सारी चीज़ें मेजर करके एक मशीन होगी जिसको जो हमारे एग्जैक्ट वाइटल्स एट दैट पॉइंट इन टाइम के लिए एक पिल बना के हमें डेली आई थिंक दैट इज द फ्यूचर. वो यही है future. यही है ना? और पिल की बात भी नहीं है, इट्स अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स एज वेल. अब एक न्यूरा रिदम नामी चीज आई हुई है, वो जब सर पे हेडबैंड लगाते हैं, इट गिव्स यू ब्रेन वेव्स टू रिलैक्स यू और व्हाट नॉट. I heard about. Is that work? I don't know, but I think it's a Sounds step in the, pseudoscientific to me a little bit. totally, but it's a step in one direction because then Neuralink is also coming, जो कि Elon Musk बना रहा है. That's crazy. And I actually wanted to do my PhD in computational neurosciences just so that I could work for that company and like really do some crazy shit because I'm getting it as soon as it comes. Imagine giving yourself orgasms through an app. Imagine not taking a drug and getting to that high because you have that Neuralink installed. Yeah, but the orgasm would be more and more worthless or marginal utility होती है, and then it just it's useless. I mean, probably that's where good companies come in. आपकी subscription कौन सी orgasm company के साथ है? हाँ, हमारा pink orgasm, हमारा ये वाला. There's that rat experiment, right, where they put like an electrode in its head and it stimulates the pleasure center, and Yeah. you leave the rat in there, and it's almost like giving it heroin because it keeps slamming the button, yeah, until it dies. Yeah. But that is something else as well because that's rooted in this very, again, Western idea that orgasm Pleasure is genital. seeking. That Oh. orgasm has to stem from the penis or the clitoris or the anus or Oh, that's the a Western vagina. idea? That's a Western idea. Uh-huh. Because हमें देखें, आप इंडिया में जब orgasm दिखाना होता है बॉलीवुड में तो फूल मिल जाते हैं आपस में. हमारा तो गुलाबों के जरिए orgasm हो रहा होता है. And a lot of this knowledge came from disability studies, people जिनकी amputation हो जाती है. तो just the point जहाँ पे आपकी amputation हुई हुई है, it is this place where you've stored so much trauma that your body had to be cut from that place. And it feels incomplete, but yet it feels complete. तो उस एरिया के बिल्कुल ऊपर जो आप टच करते हैं ना, those sensations are simultaneously painful and pleasureful. And it is this very interesting thought in sexual studies and in sexology as well that pleasure and pain are two sides of the same coin. And I think it, at a political level, it goes on and it connects to the conversation that we are having in our contemporary times about sexuality, where that distance between pain and pleasure is so little. And the people who are engaging in sexual behavior now, they have such vast ignorance about that. कि वो when does it become harassment? And till what point is it okay? वो line बहुत narrow है. और हर कोई उस पर अपने अपने conjectures फेंकने की कोशिश करता है. जैसे चूतिया बच्चों ने उस दिन बोला हुआ था कि if you're ugly then it is harassment. If you're rich then it's okay. तो भाई ठीक है, फिर आप अगर अगली है तो जाके That बॉडी, sounds like a meme and a joke. या तो फिर आप जाके बॉडी बना लें. हाँ. इतनी कोफ्ते तो 250 रुपए की जिम में जाएं, बनाएं डोले. पूरे शादरे ने बनाए हुए हैं, पूरे गजुमते ने बनाए हुए हैं. हाँ. Liposuction भी हो जाती है. हाँ, यही तो तरीका है. हाँ. So it's just like this fine line between pain and pleasure. So I think orgasm can be painful as well, and orgasm can originate from a painful site as well. So a lot of people who are amputees, they can be they are stimulated. Is that British king that used to get pain every time he had an erection? You heard Oh, about this one? I It's don't like know. एक king था जिसको erection होते हुए pain होती थी. Was he circumcised? He wasn't circumcised. There was some issue, and it's like Yeah. there's a condition to it, right? Yeah, There's a name. phimosis. What's it called? Phimosis. Phimosis. Phimosis ये होता है कि आप इतने गंदे हैं कि जब आपका बचपन में खतरे नहीं किए गए, हाँ. तो आइडिया इज कि आप अपनी स्किन को फुली रोल बैक करें पीछे हाँ. और अपनी पूरी पीनस को धोया करें पिशी करने के बाद या दिन में 1-2 दफा. हाँ, वो तो sanitary है ना? Sanitary है, but a lot of people don't do that, and as a But that's result, Hindus have to do that because they're not circumcised. yeah. And I've dated one who wasn't हाँ. and had a very clean Um, down there in another region habits. because yeah, childhood से वो ये कर रहे हैं. But Because when it's not erect, then the foreskin covers the hole where the piss comes out from. और skin And के then the piss can just
just be dripping out? No, actually, उस Disgusting. skin की नीचे वाली जो side है वो secretions release करती है, which is very natural. But those secretions get trapped there. Like a sweat secretion or a It's perspiration? Or? it's the same glands, so you're biologically right. The same Okay. glands that produce sweat elsewhere in the body, हाँ. वो penis की उस वाली जगह के ऊपर they produce other secretions. It's called smegma, if you just want to know. Wow. Disgusting name. SMEGMA, smegma. Yeah. All right. Store some of that smegma in the fridge, man. Yeah, it's transparent, but it gets white and cheesy after a while. Wow. Wow. So if you don't roll it back and clean it, वो infection cause कर देती है. But a lot of people who are circumcised get it as well, क्योंकि हमारे यहाँ खतने के अंदर वो सारी की सारी स्किन ही काट देते हैं. तो वो बेचारा जहाँ पे खड़ा होता है, तो वो जगह ही नहीं होती है उसके पास खून पूरा भरने की. Oh. You know, sometimes you get such a hard morning boner that it actually hurts. Hurts. It's That's because the skin is being pulled. Yeah. And they cut off too much of it. But in these people, the skin has been cut off too much that even a normal boner, not a very hard boner, hurts a lot. Oh. So ideal circumstances are actually to be uncircumcised and be sanitary. That's the ideal penis state. कि बचपन से आपको सिखाया जाए, बचपन से आपको धोया जाए और आपको सिखाया जाए, और बड़े होकर अगर आपने करानी है 18 साल के बाद तो अपनी खुद करा लो. I've often wondered what the most sanitary and healthy way of going Yeah, about it's it this. is. So Because it's we just also to wash lose up. like a lot of our sensations when we cut off the skin. This is not me Acha, advocating. we do. Oh yeah, that's the most sensitive part of the skin. So when nerves are gone and now you're feeling less pleasure because you're circumcised. Absolutely. और वो जो foreskin है वो एक जगह पे आके collect होती है on the underside of the penis. It's called frenulum. Frenulum. Yeah, that's where there's the highest concentration of nerve bodies. Okay. और मैंने ये notice किया कि a lot of people, मैंने ये notice किया. This is actual research, experiential research. मैंने ये notice किया कि a lot of people in Pakistan have their frenulum removed. Luckily, I don't have my frenulum removed. Excellent. Where's the frenulum once It's again? on the, is this the penis? Okay. So it's on the underside, जहाँ पे head नहीं खत्म होता. Yeah. Oh, that area जो- where it joins. वो जो skin यूं होके नहीं आ रही होती गरारे की तरह. Yeah. That गरारा is the frenulum. Okay. So if you have more of it, हाँ. then if you just hold it and pinch it slightly and then you rub it, you'll get an orgasm on a flaccid penis. Jesus. Yeah. Huh. Yeah. I'm sure prostitutes can use this information. I am not a prostitute, but I've used this information. In fact, एक दफ़ा मैं बोर्ड के पर्चे दे रहा था और 6 मिनट रह गए तो मेरा पूरा 10 नंबर का लॉन्ग आंसर रहता था. तो मुझे इतनी टेंशन हुई कि I discovered for the first time in my life that I could stimulate my penis over there. मैं टेंशन में पकड़ के बैठा हुआ था. Did you know it was called the frenulum then? No, nothing. I was, I think, 16 or 17 years old, and I just Okay. stimulated and I came in my pants. During an exam. And then I had 4 minutes left, but I had mental clarity. And I attempted that. Dude, masturbation leads to mental clarity Masturbation for is sure. amazing. I was the second best swimmer in my high school, and I developed this habit after that. कि जल्दी से शावर लेने से पहले बाथरूम में जाके, you know, HSN में भी होते होंगे swimming competitions. Yeah. Just like that in my school as well. In fact, we are sister institutes. हमारा fixture हुआ करता था. Oh. Aptabad Public का और HSN का. Oh. So I would go in the पिशी करने वाला bathroom and quickly masturbate and come out. And I think I was the champion in breaststroke. Ironic. Well, you know, I was just researching this because a lot of people, have you heard of the No Fap Club? I haven't. These guys believe that if you don't masturbate, you know, you start getting superpowers and shit like that. Bullshit. And like the first week is like, oh, you're just level 1 of your superpower. Absolute bullshit. अगर आप एक हफ्ता masturbate नहीं करते ना तो आपकी superpower level 1 होता है. And वहाँ पे they've revered these heroes who have not masturbated 5 साल. तो 5 साल मुस्त जनी ना करने के बाद जो बंदा जबरदस्त लेवल पे पहुंचता है ना उसको रिवेयर किया जाता है. वाचिंग इंटरव्यूज उनके यूट्यूब पे इंटरव्यूज उन लोगों Very ख्वाजा सराह. 6 साल हो गए. अच्छा वो 6 साल वाला बंदा जो बात कर रहा है मैं कह रहा हूँ यार तो बोंगा है यार. Yeah. Come to think 6 of साल it, इसने और उसके बाद मैं बात सुनने का दिल नहीं कर रहा. मैं क्यों इसके करतूत करूं जो ये कर Come रहा to think of it, so many men are scared of their own inherent masculinity. फिर भरम किस चीज का है? Because it's a very ख्वाजा सराई thing to do as well. अच्छा really is it? Why was Yeah, that? ख्वाजा सराह कल्चर के अंदर जो बेसिकली जो अमल है जिसको हम सर्जरी कहते हैं आजकल की मॉडर्न टर्म में. It's a very spiritual experience. Okay. When a ख्वाजा सराह person goes through an indigenous surgery of sorts. What is the surgery? It's a sex change operation. It's what we now call a sex change operation, but it Okay. has been in existence for a very long time. Indigenous तरीके से या अच्छा really? अतार और नाई और ख्वाजा सराह गुरु किया करते थे पुराने वक्तों के अंदर. And it's a very spiritual practice. It's linked with this idea of a Sufi saint जिनका नाम ख्वाजा था जो कि चुनरी ढकते थे और घुंघरू पहनते थे और खुदा का कलाम पढ़ते थे जगह जगह जाके. It's very similar to what बुल्ले शाह said ना, घुंघरू पढ़े ज़ात नहीं घटती सानू नच के यार मनावन दे. यार आपका खुदा है सबसे बड़ा जिसको आपने मनाना है. तो वो एक जगह गए और वहाँ पे उस मुल्क के बादशाह ने उनको पकड़ा. मुल्क से मुराद गाँव होगा, पुराने वक्तों में ये होता था. और बोला कि तुमने औरतों का लिबास क्यों पहना हुआ है. तो उन्होंने बिल्कुल आपदा परवीन जी वाला जवाब दिया कि मैं खुदा का प्याला हूँ, वो जो बहाना चाहे बहा दे, इस वक्त मेरे अंदर औरत की रूह बह रही है. तो उन्होंने भरे दरबार में काजी ने उनकी शलवार उतार दी.
और they pointed to his penis and said कि तुम तो मर दो. So he just grabbed her knife and he cut it all off and he died. He bled to death. I bled to death. और उस काजी के दरबार के अंदर उनका मज़ार बनाया गया. तो ख्वाजा सरा basically means ख्वाजा को मानने वाले. अच्छा. So yeah. So anybody who wants to remove the penis. No. ख्वाजा सरा was a spiritual thing कि आप उस saint को मानते हैं. जैसे saint को मानते but the final act is to the act of closeness, the act of closeness to God for ख्वाजा साहब was that. अच्छा. So ख्वाजा सरा कल्चर को हम खूबसूरत बात है. क्या खूबसूरत बात. तो मैंने बोला ना कि अगर यही मुझे मर्द बनाता है क्योंकि मेरे अंदर औरत की रूह है इस वक्त और वो औरत की रूह मुझ में खुदा ने डाली है. तो अगर तुम इंसान को ये देख के तुम खुदा की कुदरत और तुम खुदा की खलकत से तुम इनकारी हो तो आओ मैं अपने जिस्म को तुम्हारे मुताबिक बना दूं, ये लो, ताकि तुम खुदा की खलकत के साथ यकीन कर सको क्योंकि मेरे अंदर औरत की रूह है. और अगर तुम्हें ये तस्लीम करने के लिए मुझे ऐसा देखना जरूरी है तो लो ये सही, मैं खुदा का सच जीऊंगी. It is that spirit. We are living the God's truth. Because God creates and nobody can meet God. Nobody has met God. The only way you can meet God is through God's creation. It's like Banksy, the artist. Nobody has seen him. So people say, oh, we love Banksy. They are lying. What if she's a woman? They know nothing about them. What they say is, essentially when they say I love Banksy, is that they love Banksy's art. So when people say I love God, they are lying. You cannot love God until you love God's art. And this craziness, this chaos, this embodiment of having a different body and having a different soul and whatnot is God's creation. Can you embrace this as well? If you can't, well, there you go. Let me slaughter it. So it's that. वो एक इतना बड़ा It's almost like a sacrifice to prove a point. Absolutely that. So ख्वाजा सरा का basically मतलब ये है. It is not a translation of transgender. Transgender का लफ्ज़ 1980 के अंदर पैदा हुआ है. ख्वाजा सरा का लफ्ज़ 1600-1700 चला आ रहा है. I have a lot of issues with people who say कि oh ख्वाजा सरा is a translation of transgenders. No, it isn't. Yeah, I always thought so too. Pardon me for being. No, it's okay. It's a lot. I didn't know the whole mythology around it. Yeah, because we've kept it secret, na. 1857 के बाद. I mean, हम लफ्ज़ कितना इस्तेमाल करते हैं और हमें mythology नहीं पता. This is crazy. But yeah, sorry, I was interrupting. I was saying. So 1857 के बाद when the Britishers came here, and before that as well, they were in awe of us as a people, brown people. Okay. And one of the reasons why they were in awe with us is because of our gender diversity. And this is a very popular misconception that we are a very conservative society. If we are a conservative society, Jhansi की रानी मैदान जंग में क्या कर रही थी? Another misconception is the two-nation theory, which was created by a person who was a patron of the white people, but present एक और तरीके से की गई, बन कुछ और गई. लेकिन if you have to dissect it and come back to it, if we are the two-nation theory, झांसी की रानी का जो आर्मी का लीडर था, why was he बाबा गौस खान, जिनका मज़ार आज तक झांसी के मकाम पे है. Ironic, isn't it? Yeah. यहाँ पे झांसी मोहतरमा लड़ रही हैं, वहाँ पे टीपू सुल्तान साहब लड़ रहे हैं. और ठोकर देने वाले, दगा देने वाले दोनों को कौन थे? झांसी के केस में उनके अपने मराठी, हमारे केस में अपने मीर सादिक मीर जाफर. तो ये अपने ही हैं जो हमेशा बाहर वालों के साथ मिलकर ये हरकतें करते हैं. तो ऑल दिस पीपल हु आर ट्रांसफोबिक इन पाकिस्तान, मुझे उनका ट्रांसफोबिया कल्चरल नहीं लगता, मुझे उनका ट्रांसफोबिया कंस्ट्रक्टेड लगता है. यार ये लेकिन रिलीजियस जो पर्सपेक्टिव है कि खुदा ताला ने आदम और हवा को पैदा किया और अगर हमने तुम्हें जोड़ा जोड़ा पैदा किया तो कोई ऐसा इंसान कैसे बनाया जा सकता है जिसका कोई जोड़ा ना हो. तो ये वाला एक पर्सपेक्टिव देते हैं ना यूजुअली कंजर्वेटिव. बट दिस इज अ स्ट्रॉ मैन आर्गुमेंट ना. आपने किसी और चीज को उठा के आप कोई और चीज प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं. हाँ, खुदा ने आदम और हवा का जोड़ा पैदा किया होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स जस्ट बिलीव इट. हाउ इज दैट रिलेटेड टू द फैक्ट के खुदा ने ये तो नहीं बोला कि हर इंसान आदम और हवा के जोड़े की तरह ही पैदा होगा. बहुत से लोग बांझ भी मर जाते हैं. बहुत से लोग इंटरसेक्स कंडीशन के साथ पैदा होते हैं. बहुत से लोग गूंगे पैदा होते हैं, बहुत से लोग बहरे पैदा होते हैं. मगर इस चीज के साथ भी रिलेट करना कि ये एक डिसेबिलिटी है. बट आदम हवा का कॉन्सेप्ट इज ऑफ जेंडर ना, अ मैन एंड अ वुमन. सो या खुदा ने आदम और हवा पैदा किए, मगर खुदा ने ये कब कहा कि मैंने सिर्फ आदम और हवा ही पैदा करने आइंदा भी. शुरुआत करने के लिए आपने रिप्रोडक्शन का पॉइंट प्रूव करने के लिए आदम और हवा पैदा कर दिया. नंबर 2, आई थिंक हम लोग इस्लाम और मजहब के अंदर बिकॉज ऑफ कॉलोनाइजेशन हम बहुत लिटरली लेते हैं. देयर आर 2 ways of examining religion. One is a more material one, which is what is the Wahhabi way of looking at religion, or Christianity के अंदर is the more Protestantism way of looking at religion, which is also the Church of England and the Church of Pakistan. क्योंकि Church of England Victorian values was very Protestant values. बड़ा. And I know हम पाकिस्तान is a Muslim majority country और हमारे यहाँ क्रिश्चियन बेचारों के साथ बहुत बुरी होती है. As a result, we do not get to critique Christian philosophy a lot, but I think now the point has come when we need to. Because अगर आप पाकिस्तान की colonial history को examine कर रहे हैं तो we need to critique Protestantism and how much of an influence it had on the IPC, the Indian Penal Code that then became the Pakistan Penal Code. उसकी बहुत Protestant values है about this work ethic कि हम अमीर इसलिए क्योंकि हमने मेहनत की है
इसलिए नहीं क्योंकि हम लोग जद्दी पुश्ती जायदादें जमा कर कर हारी हैं और किसानों से निकाल के नचोड़ के लाई हैं। उसकी बड़ी वो वाली एथिक, इट्स वेरी लाइक यू नो कि गॉड हैज मेड मैन एंड गॉड हैज मेड वुमन एंड एडम एंड ईव एंड वी डोंट नीड द पेस्टर एंड वी डोंट नीड दिस एंड वी डोंट नीड द दैट, एंड इट्स वेरी दैट. So that feeds into it because आदम और हवा की लॉजिक तो predominantly once again white people और English people यूज करते हैं. So पाकिस्तान के जो ट्रांसफोब्स हैं ना, what they do is कि वो अमेरिका की और बरतानिया की वीडियोस देखते हैं कि वहाँ का गोरा कंजर्वेटिव, वहाँ का ट्रम्प का सपोर्टर, वहाँ का ये बिखरे बालों वाला क्या नाम है उसका चूतिए का, मुझे भूल गया, बोरिस जॉनसन का सपोर्टर, वो उनकी बातें देखते हैं और वो उनको पाकिस्तान में उर्दू में तर्जुमा करके रिपीट करते हैं. A lot of these YouTubers, vloggers as well, they think it makes them cool. Yeah. I mean, I don't know, मेरे लिए homophobia was the first encounter that I had was in HSN, and in HSN it was more an indigenous culture. Yeah. It's like Bondu loves जो इस्तेमाल करते हैं या Bondu बाट के लिए. हाँ, Bondu बाट के लिए होता है. हाँ ना, exactly कि तुसी बाटो तुसी तो Bondu होगे फिर. हाँ, Bondu, गांडू, अबे खस्सी, ढीला है, इस तरह के जो अल्फाज इस्तेमाल, और फिर उसको छेड़ना भी है, उसको मोलेस्ट भी करना है, अपनी ठरक भी निकालनी है उस पर, ये भी मर्द कर रहे होते बिल्कुल ट्रू. और सबसे ज्यादा मोलेस्ट और हरास वही हो रहे होते थे जिनके अंदर से ज्यादा थोड़ी सी फेमिनेट अगर हल्की सी भी. आई एम वन ऑफ दोस. सो इट डिडंट फील लाइक इट वाज absolutely. My name was Stepney. Western movies or Hollywood didn't teach us to do that. My name was Stepney. No, Hollywood didn't teach us as well, and Western people didn't teach us that specific action. Yeah. उस action वो जिस तरीके से manifest हो रहा है, मैं तो उसकी historical construction की बात कर रहा हूँ. Christianity has led to Islam. It's almost like monotheistic. Because at the end of the day, आप किसी को harass क्यों कर रहे हो for being feminine? It's because you consider femininity as bad. It means that masculinity means something. Masculinity का एक मतलब है. Femininity is bad for a man to have. Or just period. Because otherwise, if a girl is more and more feminine and exaggerated in her gender, the more attractive she is. आप उसको हासिल करना चाहोगे. उसको आप मुल्क तो नहीं दोगे चलाने के लिए. नहीं दोगे. अगर वो मुल्क चलाओगी तो आप बोलोगे साड़ी थी पुत्रा वर्गी. अगर वो कमा के लाएगी तो. To be successful, you have to be a man. बेनज़ीर सिंधी. अच्छा, सिंध में लदा कॉन्सेप्ट. देखिए, सिंध के अंदर सिंधी इंडिजिनस कल्चर के अंदर, या सिंध की बेचारे की बड़ी कॉलोनाइजेशन हो गई है. सिंध के इंडिजिनस कल्चर के अंदर फेमिनिटी की एक रिवियरेंस है. अजरक is a gender neutral piece of clothing. Women wear it, men wear it. So Sindh is amazing when it comes to it. अगर आप उधर जो सेवन सिस्टर्स का जो कॉन्सेप्ट अगर आप उसको देखें, अच्छा बाय द वे ख्वाजा सरा का लफ्ज़ सिंध के अंदर नहीं है. सिंफी बराबरी तो वहाँ पे भी नहीं हमें नजर आती. No, very right about it. देखें, gender division is something else. हाँ. And femininity की reverence is something else altogether. Okay. So femininity is revered in the sense कि सिंधु सागर के साथ जो एक रिलेशनशिप है और धरती माँ के साथ जो एक रिलेशनशिप है. इट्स एन एग्रीकल्चरल सोसाइटी. फिर अजरक आपके पास एक जेंडर न्यूट्रल आर्ग्यूमेंट है. देन ख्वाजा सरा का वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता, फकीर का लफ्ज़ एग्जिस्ट करता है वहाँ पे. ख्वाजा सरा इज कॉल्ड फकीर, के ये फकीर है. फकीर में खुदा के फकीर है, ये फकीरी में, फुकर में है. ये काफ़ी इंडिजनाइजेशन है वहाँ पे उस चीज़ की भी. बट लाइक आई सेड, टॉकिंग अबाउट दीज कल्चर्स is going to be a little anachronistic. What is anachronistic? Anachronistic means time से devoid, time से हटावा. क्योंकि हम कब की बात कर रहे हैं, हम कल की बात कर रहे हैं, हम आज की बात कर रहे हैं, हम परसों की बात कर रहे हैं, या हम कोई मखलूत सा एक बयान करने की कोशिश कर रहे हैं. बिकॉज हमारे ऊपर तो हम भी काबिज हुए. रियासत पाकिस्तान भी कॉलोनाइजर है. उससे पहले आपके पास गोरा भी कॉलोनाइजर था. हमने तो कभी एक इंडिजिनस कल्चर को सामने रखते हुए, इंडिजिनस विजडम को सामने रखते हुए पाकिस्तान के इमेज की कंस्ट्रक्शन की नहीं. हमने तो ये नहीं बोला कि हम सिंधी, हम बलोची, हम पठान, हम पाकिस्तान. हमने बोला ना हम सिंधी, ना हम पंजाबी, ना हम बलोची, हम सिर्फ पाकिस्तान. और फिर ज़बान हमारी उर्दू. ज़बान हमारी उर्दू जो कि बेसिकली नॉर्थ वेस्ट इंडिया की अशरफिया की ज़बान थी, जिनको अलीगढ़ के लोंडे कहा जाता है आज की ज़बान में, जिन सबको सर के टाइटल्स भी मिले हुए थे. उर्दू इज़ अ ब्यूटीफुल लैंग्वेज. आई लव दिस लैंग्वेज, बट स्टिल you know how Punjabi has been deleted culturally as well. तो ये छोटे छोटे साइंस हैं जो आपको बताते हैं कि कॉलोनाइजेशन इतनी परमिएट हो गई है. अगर आपने कहीं पे भी परखना है कि कॉलोनाइजेशन इस कल्चर का हिस्सा बन चुकी है कि नहीं, आप देखें कि यहाँ पे एंटी नेटिव सेंटिमेंट कितना है, कि अपनी जो चीज़ है उसके खिलाफ कितना ज़्यादा एक सेंटीमेंट है. और अगर उसके खिलाफ सेंटीमेंट नहीं है तो उसकी फेटिशाइजेशन फिर कितनी ज़्यादा है. कि चलो जी, वी लव सिंधी पीपल, हमने अजरक के प्रिंट के मास्क बना दें, लाइक दैट. The appropriation of that. Yeah, so it's like वो दोनों ends of the same spectrum है. ये आप देखें, आपको पता चल जाएगा आप कितने कॉलोनाइज्ड हैं. अंग्रेजी बोल के भी देख लें दफ्तर में जाके सरकारी, तो पंजाबी बोल के भी देख लो, पैसे ज्यादा मिल जाते हैं. जो फिर आप बता दें. So impressive he speaks English. Oh my gosh, with an accent. Yeah man, I mean मैं corporates के jobs जब लेने जा रहा होता था, when I would be
एडवर्टाइजिंग फॉर देम. तो मैं कमरे में बैठ के, एक आबिद भाई थे, याद होगा, आबिद भाई लेके जाते थे मुझे, क्योंकि खाली अंग्रेजी बोलनी आती थी, इनटू द यूनिलीवर ऑफिस, एंड आई बी लाइक हाँ वी आर गोइंग टू शूट दिस टेस्टिमोनियल. जब बस अंग्रेजी के 4 जुमले बोल दिए, हाँ ठीक है लड़का कर लेगा काम, और ठीक है तुम्हें कम फी मिलेगी, और यू नो मोस्ट ऑफ द फी वाज गोइंग टू हिम एनीवेज, बट जस्ट being able to speak English led to. तो पता है I'm offered 4 times the money of much more experienced screenwriters in Karachi, simply because of the fact कि मैं उनको proper formatted screenplay लिख के देता हूँ अंग्रेजी, रोमन, उर्दू क्या. यार ये तो बनता है भाई. हाँ, It's so annoying जब आप non-formatted screenplay पढ़ रहे होते हो, which is what I write for myself because I'm doing YouTube videos. लेकिन अगर कोई बंदा आपके साथ screenplay share करता है, जो you know a lot of times I get these screenplays shared to me because I'm YouTube storytelling and stuff, so they'll be like हमारा screenplay पढ़ लेना. शुरू से आखिर तक एक पैराग्राफ होता है. यार मैं शुरू ही करता हूँ और मैं कहता हूँ यार तुम्हारी अगर इंटीरियर डे you know कुछ दो यार. टेबल नहीं मैं है. नोट्स कहाँ बनाऊँ, डायरेक्टर्स नोट्स, because when I am making it, when I am writing a screenplay, for me the first point of reference is the director, and I'm assuming that this is going to a very good director who needs to plan his cameras, who needs to plan his shots. So मेरा तो जो पहले सीन होता है आपका वही मैं बहुत बड़ा लिखता हूँ. It's very big, and then dialogue के आगे there are all of his parentheses etc. And once it gets in the flow, then I'm like, okay, the director understands now, then I can trim it down a little bit. But a lot of people don't write like that. They write what's in their mind. And which is a good place to start. I mean, if you're the writer and you're the director, then you don't necessarily have to write literature for the other person to get the mood and tone of the thing, right? So you just write Amanullah standing. So मुझे पता है Amanullah standing इस्त्री कर रहा है, तो मैं इस तरह इस्त्री कर रहा है लिख दूंगा वहाँ पे ना. Amanullah iron. Yeah, that's how I write for myself too. हाँ, क्योंकि मैंने ही डायरेक्ट करना है ना. तो अब मैं क्यों अपने आप को वो लज्जतें अब फराहम करूं लिटरेचर की, उर्दू अदब के अंदर में gratuitously next to the iron, ironing his clothes. He couldn't feel more blessed. With each stroke, he irons out the kinks in his shirt, and he feels the stress in his body relieving. His shoulders drop, and he says, we see him looking out of the window, and then he sees Zubeda. Amanullah तो की कर रहा है? जी मैं ये ऐटे में इस्त्री कर रहा है. अच्छा नहीं यार तुम बहुत शरीफ हो. मैं तो Zubeda watering the plants, but it's hot outside. So Zubeda turns the pipe towards her and douses herself in cold water in the Lahori heat. Amanullah feels something in his pants. Should he be feeling it? He's confused. Continued. अगली एपिसोड में. और ये हमने तैयार की है पाकिस्तान की पहली पॉर्न वीडियो मूरा स्टूडियोज के अंदर. अनफॉर्चुनेटली ये अमानुल्लाह नहीं कंट्रीब्यूट कर पाएगा. ज़ुबैदा डायरीज. ज़ुबैदा अमानुल्लाह नाल फंस गई. ये बनाएंगे हम वॉल्यूम 1. उसमें ज़ुबैदा अपने आप को वाटर शावर देगी फूलों को पानी देते हुए. Oh man, if Mira Sethi plays Zubeda na, I would love in the sketches. I love Mira Sethi. If she was to hear this, she would just. Mira Sethi loves me. Mira Sethi, if you get to hear this, I know that you have tweeted in my favor once saying that I'm a pathbreaker. I fucking love you. Let's make content together. Let's do drag together. Mira Sethi can be a. Mira can do drag? You think? Yeah, anybody can do drag. Really? Drag is gender exaggeration. Yeah, it is. But is within everyone? Don't you have to be a little androgynous in the first place? No, go do it. Yeah. बस कर दो. There is this. हाँ वैसे मैंने भी कई दफा दुपट्टा तो चढ़ाया है. Wow, that's drag. That's drag? Straight That's up? drag. That Moin Akhtar drag? Well, that's drag as well. It's just that, I mean, you may or may not call it. If it was political, then it is definitely drag. Because drag is not apolitical. That's the only thing. Yeah, who said this now? Me. You said it. I did. I said this. Everything. वो तो जिस तरह वो Kevin Smith की एक example थी ना. A friend of his told him कि you can't make a non-political film. So he went ahead and made Clerks just to prove the point that you can make a non-political film. But by making a non-political film, he was making a political film. That's the beauty of queerism. That's queerism in action. People think that queerism is associated with LGBT. No, the fuck it is not. It is the fact अपने माँ बाप को आप जाके बोलते हैं कि मैं फूफी की बच्ची से शादी नहीं करूँगा, मैं अपनी मर्जी की लड़की से शादी करूँगा. You are defying the patriarchal norms, or you're defying the norms that exist for the relationship of marriage. Do you think there is a patriarchy? Oh yeah, absolutely. Or is it just like this feminist notion and there is no, there's definitely the patriarchy. And the sad part is, men also get affected by it. They also get a lot of benefits from it. But आप मुझे एक पाकिस्तानी मर्द दिखाएं, unless उसका बाप जो है वो ये मलक रियाज हो, जिसको इकोनॉमिक एंजाइटीज ना हो, जिसको इकोनॉमिक टेंशन हो कि हाई शेट मैंने पैसे कमाने, जिसको 17 साल की उम्र से टेंशन शुरू ना हो गई हो. I was 11 when my dad got the first heart attack. Ever since then, I've lived under this notion that because I'm the boy,
I have to take care of my family. I worked a part-time job while I was doing my MBBS. I make good money now, but I've like really worked hard. I've always stressed about, oh shit, कि हाई अगर ये नौकरी खत्म होगी तो क्या होगा? चेंज करने से पहले हम सबको फाइनेंशियल रूइन, फाइनेंशियल डेवस्टेशन का डर होता है. लड़कियों को पढ़ाया जाता है वो वाले सब्जेक्ट्स जो कि या कभी कभार उनके शौक होते हैं या उनके अच्छे रिश्तों के लिए. बच्चों को वो वाला सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है इसमें पैसे कमा सकते हैं. हाँ, लेकिन आई मीन जेंडर रोल्स इज डिफरेंट देन देयर बीइंग लाइक एक कोई पिदरशाही निज़ाम जिसके अंदर मर्द बैठे हुए एक क्लूड कर रहे हो कि खवातीन को दबाना चाहिए. What is? That's not what patriarchy means. पावर का कंट्रोल नहीं कहते patriarchy is power का कंट्रोल. Power is an emergent phenomena. Okay. Emergent phenomena का मतलब होता है 2 + 2 is more than 4. कि मैं मिला, मेरी ये जहानत है, आपकी अपनी जहानत है, मैं अकेले में काम करूंगा तो अलग काम, आप अकेले में करेंगे तो अलग काम, और जब हम दोनों मिलकर करेंगे तो it's going to be more than just the sum of our inputs. You get it? Okay. That when you meet, then there's something, that one extra thing as well. So that is called emergence, that extra thing that comes out. So power is basically emergent in patriarchy because it is structured like that. Naturally, power is going to get distributed along that axis. Somebody is going to be less powerful and somebody is going to be more powerful. And when those people in power recognize it, they will use it to their benefit. They will, and people do. मर्दानगी और जनानगी के नोशंस शादियों के अंदर और रिश्तों के अंदर यूज किए जाते हैं कि तुम लड़की हो, तुम ये नहीं कर सकती. Does the person truly believe it? ये किसी किताब में लिखा हुआ है कि लड़की इंजीनियरिंग नहीं पढ़ सकती, कि लड़की जहाज नहीं चला सकती. तो ये जो किरदार आपने प्ले किया है मर्द होने के नाते कि मैं अब पैसे बनाता हूँ, मर्द होने यू के काइंड ऑफ फिट इनटू इट. Yeah. यू फिट योरसेल्फ इनटू जो किरदार समाज ने आपकी तरफ फेंका मर्द होने के नाते, उसके अंदर आपने अपनी राहें देख ली और उसके ऊपर चलना शुरू हो गए. आपने उसको तो वो तो सारे कर रहे होते हैं, लेकिन उसके अंदर कोई पेट्रियार्कल एलिमेंट नहीं था. पता नहीं. All gender roles are going to lead to a form of gender division, or are they, मतलब कि वही होता है ना कि LGBTQ के अंदर एक दो पॉइंट्स जो मुझे ऑड लगते हैं. You're asking such beautiful questions that lie at the heart of contemporary queer and feministic theory. हाँ, कि हम क्या करें? क्या हम recognize करें कि अगर हम differentiation कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली सेक्सिज्म पैदा होगा? हाँ, अगर हम बोले कि मर्द ऐसे हैं और question, औरतें ऐसी हैं और ख्वाजा सराह ऐसे हैं, तो हम लोगों को डिस्क्रीट कैटेगरीज के अंदर डाल रहे हैं, राइट? हाँ. या जेंडर इटसेल्फ इज फक्ड अप, सो लेट्स एबॉलिश इट ऑल टुगेदर. एंड दैट इज व्हाट इज रेडिकल फेमिनिस्टिक थॉट, कि एबॉलिश मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी. और ये बड़ी अच्छी होती थी, मुझे बड़ी अच्छी लगती थी रेडिकल फेमिनिस्ट ग्रोइंग अप. मैं बड़ा सुरखा था ना, तो सुरखों को रेडिकल फेमिनिस्ट बड़ी पसंद होती हैं. आई यूज्ड टू आइडेंटिफाई एज अ रेडिकल इको फेमिनिस्ट. इको भी आता है कि जेंडर इज आल्सो एनवायरमेंटल. अब रेडिकल हो गई हैं ये टर्फियां जिनको हम फार्ट्स कहते हैं, फेमिनिज्म एप्रोप्रिएटिंग रिग्रेसिव ट्रांसफोब्स, जो कहती हैं कि ट्रांसजेंडर पीपल आर एक्चुअली मेन प्रिटेंडिंग टू बी वुमेन. दे शुडंट डू दैट बिकॉज बाय डूइंग सो दे आर लेजिटिमाइजिंग फेमिनिटी. What? Precisely. What? So ये terms are fucked up. Radical feminism was amazing. So मेरे ख्याल से जो D10A आता है हमारे पास से, यहाँ पे D10A भी इसको नहीं कहना चाहिए. मेरे ख्याल से it should be the beauty and diversity जो feminist thought के अंदर आती है, वो ये कि जी women, कुछ कहते हैं कि जी women are women as they are right now. हम ये नहीं कह रहे कि उनको ऐसा होना चाहिए, मगर मुआशरे के अंदर इस वक्त लड़की ने दुपट्टा भी करना है, उसने घर में रोटी भी पकानी है, और वो जब सुजुकी के अंदर बैठ के आएगी या बस के अंदर बैठ के, तो उसको लोगों ने ये चिकनी छेड़ना भी है. तो तुसी इंज ना करो, ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ, ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰੋ. ਰੈਡੀਕਲ ਫੈਮਿਨਿਸਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਆ. ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨ ਦਿਓ. हाँ, वो लिंग्विस्टिक उसके भी इश्यूज होते हैं, ही शी दे इट, वो कितने ज़्यादा बन गए हैं और कनाडा में तो बनते ही जा रहे हैं जेंडर प्रोनाउन. दिस इज लाइक जस्ट वाइट पीपल फेमिनिज्म. कैन वी फकिंग गेट ओवर इट? लाइक आप किसी ख्वाजा सराह को ही बोले या शी बोलने कोई मसला हुआ है? कभी तक नहीं हुआ, राइट? बट मुझे अब वो होना शुरू हो गया बिकॉज व्हेन आई वाज इन अमेरिका दिस वन टाइम, आई वाज इन कैलिफोर्निया, बर्कली, दिस फ्रेंड ऑफ माइन वाज स्टडीइंग देयर and we were living in this alternative type of a living place. It was a warehouse where they had hanging rooms and stuff, and they Burning Man की लाइटें बनाते थे ये लोग, तो वहाँ पे all sorts of things were going on, and this what seemed to me like a 14-year-old boy. I saw a 14-year-old boy but dancing with older people. So I went like, what's this 14-year-old boy doing here? And I asked my friend, I was like, वो पाकिस्तानी था ना, तो मैंने कहा यार डोने क्या कर रही है यहाँ पे, कर रहा है ये यहाँ पे. तो उसने कहा यार ये क्वेयर है. आई वाज लाइक यार ये लेकिन 14 साल का बच्चा लग रहा है. अब मेरे दिमाग में कैटेगरी बन चुकी हुई है 14 साल का बच्चा. तो आई डिडंट नो व्हाट द रिएक्शन वाज गोइंग टू बी, बट बेसिकली लेटर ऑन इन द नाइट वी वर ऑल सिटिंग इन वन रूम टुगेदर, एंड आई वेंट लाइक, you know, like what my first impression was, I thought you were a 14-year-old boy.
ओ माय गॉड, रिएक्शन जो निकला है मैंने, और फिर मैंने बाद में रियलाइज़ किया मैंने एक किस्म की शनाख्त उसके ऊपर इम्पोज कर दी है। जो मैंने उसका फील किया देखने के बाद, मेरे अंदर एक कैटेगरी थी, वो मैंने उसको कैटेगरी बताई है। जब मैंने उसको बताई है तो उसके ऊपर वो शनाख्त इम्पोज हुई है क्योंकि मैंने उसको इस तरह परसीव किया है, और उस बात पे उसका ऑफेंस है। तो उसने मुझे भी फिर कहा कि यू सीम लाइक दिस एंड दैट, एंड मुझे याद भी नहीं। That's the fundamental difference. And then it went between- on and on from there. That's the fundamental difference between white Western feminism and Khaja Sarah feminism. I'm a Khaja Sarah feminist. Okay. I believe in indigenous feminism. मुझे नहीं, मैंने, yeah, I love Simone de Beauvoir. I love Judith Butler. I love a lot of these feminist scholars. My feminism doesn't start from them and end from them. So this is more about queer as a verb. Do you have to associate yourself to one school or the other? No, not really, but people do, right? Okay. So it's nice to explain it. Do you have your allegiance in one place or the other? For performative and presentive purposes, it's nice to belong somewhere that it's easier for people to put you in a category. Although I also consider myself very liminal between the lines, flowing between. I'm very quantum. Okay. I'm not very discrete. Okay. इधर फिट हो गए, आप इधर फिट हो गए. So ये fundamental difference है ना. Queer as a noun. You're fluid. Yeah. Queer as a noun, which is in white Western feminism, and queer as a verb. We are not queer because we are some label or some identity. We are queer in performance. We're queer in visibility. You meet us and you know. So for example, एक बड़ी प्यारी टर्म इस्तेमाल होती है पाकिस्तानी queer के अंदर कि तुम खुसरी सी हो. We don't use खुसरा, we use खुसरी. खुसरी हो गया. Yeah. So Pakistani indigenous queer culture के अंदर the standard noun is female. Like so many of my straight male friends, I would say कि तुम हमारे दोस्त मान के ना हमारी महफिलों में बैठे हुए हो, तो हम बोलेंगे अच्छा मुरू आ रही है. अच्छा मुरू को फोन करो, पूछो वो कब आ रही है. मुरू कहाँ पहुंची हो तुम. This does not believe that we believe that you are a woman. This is a sign of inclusion. Because everybody is a she. अच्छा, you know, I mean, and these guys have seen this. I often say this to myself as well कि मैं जा रही हूँ. जब मुझे थोड़ा सा अपने अंदर झलक महसूस होए कि ये वाली जो चीज़ है ना, ये मेरे अंदर थोड़ी औरताना है, तो मैं कह देती हूँ यार अच्छा मैंने पानी पी लिया, मैं जा रही हूँ. And that's the beauty about South Asian culture. Both genders exist within you in a sense, because right? हमारे यहाँ gender pronouns हैं ही नहीं. हमारे यहाँ gendered verbs हैं. मैं ही है. Oh, interesting. आ रही, रहा. हाँ. Get it? बैठी, बैठा. हमारे यहाँ gender भी performative है. हमारे यहाँ gender is masculine or feminine in terms of how you act it. So naturally हमारे यहाँ gender transgression is also going to be enacted. It's going to be performative. And that's the beauty of the Pakistani culture. And that's where harassment and violence also comes in. In Atchison, for example, के बोंडू, गांडू, छक्का, खुसरा, केक, मुझे स्टेपनी कहा जाता था. हर कोई मेरी गांड मारना चाहता था. स्टेपनी क्या होता है? स्टेपनी वो नहीं टायर होता है जो स्पेयर टायर. हाँ, पीछे वाला. थर्ड व्हील, exactly. जब तक मैं 9th में था, फिर मैं 10वीं में गया, तो मुझे एहसास हुआ कि ये तो ये सीन है. फिर मैंने भी सबकी लेनी शुरू कर दी. कि मुझे बोलेगा फिर मैं भी लेवा. तो यही करना पड़ता है फिर आपको. But this is at the end of the day, men need to realize, straight men and even gay men need to realize, because gay men can also be very patriarchal at times. And women, specifically women. I mean, you know, women there's some women who have toxic masculinity within them. Yeah. I mean, सबसे पहले कौन कहती है कि ये तुम्हारी जो बीवी है अपने इसको कंट्रोल में करके रखो. तू क्या जा मार दे. रान नू कंट्रोल नहीं कर सकता, रान नू काबू नहीं कीता. ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਰਦ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਾਬੂ ਆਉਂਦੀ ਇਹਦੇ ਵੱਲ. सो ये बेसिकली यही कॉन्सेप्ट है ना, वो भी प्रेजेंट करती हैं, बिकॉज इट्स द सिस्टम एंड एवरीबॉडी हु बेनिफिट्स फ्रॉम दिस सिस्टम इज गोइंग टू वर्क टू प्रोटेक्ट इट. तो अगर आप सबसे बड़े बेटे की सबसे पहली बीवी हैं और आपने ठाठा 2 बच्चे जन्ने हैं, तो फिर तो आप पेट्रियार्की के अंदर पावर स्ट्रक्चर में टॉप पे हैं. तो फिर तो पावे आपको खुद ही लगी हुई हो, पावे आपको मम्मे लगे हुए हो, आपको तो पावर मिल गई है. पहले पुत्र दी पहली रान ते 2 पुत्र आगे पीछे. अब आपकी पावर कौन छीन सकता है आपसे? अब आप मुझे आर्ग्यू करते रहे कि नो शी स्टिल स्ट्रक्चरली हैज लेस पावर देन अ मैन, बट बिच व्हाट शी हैज, शी इज वर्किंग विद इट एंड शी इज ऑप्रेसिंग अ लॉट ऑफ अदर पीपल एज वेल. सो पेट्रियार्की इज नॉट अबाउट टॉकिंग अबाउट मेन वर्सेस वुमेन, इट्स अबाउट अ सिस्टम वेयर मैस्कुलिनिटी, मर्दानगी और जनानगी के एक जायचे और एक वो बनाए हुए हैं, सांचे बनाए हुए हैं, और अगर आप उसमें से जितना बाहर जाएंगे उतनी ज़्यादा आपकी जलालत होगी. तो अगर आप पैसे कम कमाते हैं तो फिर तो टट्टी जा मार दें. अगर आप मेहरान चलाते हैं तो भाई फिर तो आपकी खैर, फिर आपका लान भी छोटा है. ठीक है, जितनी बड़ी गाड़ी उतना बड़ा लोड़ा. ये वाली जो साइकोलॉजी है मर्दानगी, पिस तो आप भी रहे हैं, मगर जस्ट बिकॉज आपको वो ख्वाब दिखाएगा कि तैनू कोई कुड़ी आप ना लभी तो हम तुम्हारा रिश्ता करा के लाएंगे, वो तुम्हें चाय भी बना के देगी, वो तुम्हारे कपड़े भी इस्त्री करेगी, वो तुम्हें मुफ्त में खुदी भी देगी.
वो ख्वाब आपके लिए कितना बड़ा ख्वाब है कि उसके अंदर आप कहते हैं कि हाँ जी पेट्रियार्की फेमिनिज्म बुलशिट, हालांकि पिस तो आप भी उसके अंदर रहे हैं। द डेटिंग कल्चर इज ऑल्सो काइंड ऑफ टू ब्लेम टू इट। Really? या बिकॉज मर्दों को लगता था ये जो टिपिकल है कि जी हमें तो कुड़ियां कभी भी मिल सकती हैं, हमारे लिए रिश्ते होके तो वो आ जाएंगी। नाउ यू हैव टू कम्पीट। अगर मैं और तुम और एक लड़की को लाइन करा रहे हैं, तुम्हें वही बच्ची पसंद है, मुझे वही बच्ची पसंद है और तुम्हें मिल जाती है, तो भाई मेरी तो हटी मैं तो फिर गया। तो अब मैं क्या करूँ? अब अगर मुझे 10 बच्चियों ने ऊपर नीचे रिजेक्ट किया है फिर मैं कैसा बॉय हूँ? फिर तो मैं अम्मी की चूज की हुई लड़की से शादी करूंगा। और ये 28, 29, 30 के आसपास के जो एक सर्ज आता है ना आपके दोस्तों में 28 से 30 के बीच में, ये आपके 80% फ्रेंड्स गेट मैरिड। वो एसेंशियली यही सीन है। ऑल द गर्ल्स दैट दे आर इंटरेस्टेड इन दे आर रिजेक्टिंग देम। तो उन्होंने लेनी तो है किसी की दुनिया को दिखाने के लिए। हाँ, और वो खानदान का इदारा भी ज़रूरी होता है। और आपको यू बीन फेड दिस थिंग कि आगे जाके क्या करना है, बच्चे पैदा करने कि नहीं करने, कंटिन्यू करना है कि नहीं करना, भाई क्या सीन है। Yeah, because And that might be an evolutionary need of the organism itself as I well think to it's replicate cultural. itself. I think it's cultural because masculinity looks different at different ages. 16 साल का लड़का 21 बट साल का। कल्चरल और जेनेटिक तो ये दो चीज़ें हुई ना कि एक तरफ से एक आपका हयातियाती एतबार से आपकी ज़रूरत है कि अपना जीनियाती मादा अगली नस्ल पे अच्छा बाय द मुंतकिल वे ये एक करना। बड़ी ये भी अगेन एक वेरी वेरी वेस्टर्न बायोमेडिकल एवोल्यूशनरी थॉट है। अच्छा, ये जरूरी नहीं? साइकोलॉजी मैं इसका बहुत बड़ा क्रिटिक हूँ। अच्छा, ये एग्जिस्ट करता है स्कूल ऑफ थॉट। ओके, आई एम नॉट डिसएग्रीइंग विद यू कि ये एग्जिस्ट नहीं करता, ये झूठ है। आई एम अ क्रिटिक ऑफ दिस थॉट। हाँ, आई थिंक इट्स लाइक लिंक्ड अ लॉट टू यूजेनिक्स। ये जो सारे एवोल्यूशनरी साइकोलॉजिस्ट थे ये वही लोग हैं जिनकी जो बेसिकली प्रेमिस एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी की ये आई थी कि ब्लैक पीपल आर लेस इवॉल्व्ड एंड व्हाइट पीपल आर मोर इवॉल्व्ड। दैट्स हाउ इट केम फ्रॉम। हाँ, वो लेकिन नस्ल परस्ती की तरफ तो नहीं हम जा रहे ना। हम तो यही कह रहे हैं ना कि अगर एक ऑर्गेनिज्म है वो आगे वक्त में इसी तरह बढ़ता है जब वो अपना जेनेटिक मटेरियल कॉपी करके उसको रेप्लिकेट करके आगे करता है। You've read Richard Dawkins. I hear that his first book is very good. So this is Richard Dawkins' theory, by the way, as well. This is the Richard Dawkins school of thought. And Darwin and many other. No, not Darwin. So Not Darwin, no. So this is evolution तो के दो different models. Sexual selection ये नहीं होती कि अगर आपने the species that is most successful is the one that replicates itself. So yeah, ish, Okay. but it's also how conducive it is to environment. Okay. It's not just about at the speed of replication. It's also about कि आपकी replication में जो आप कुछ आप produce कर रहे हो, जो mutations आपके अंदर पैदा हो रही हैं, हाँ. are they conducive with the environment external to you or not? Okay. It's basically about that. But then there is another view of evolution, which is the genetic view of evolution. It is genes that cause evolution. और उसका एक बहुत बड़ा criticism ये है कि gene is not the brain. Gene is a gene. So this idea that somehow a gene is so sentient and so cognitive that it is going to cause evaluation unto and upon itself. This is what the genetic model of evolution is. जिसका Richard Dawkins और ये सारे बड़े हाँ, but that doesn't take epigenetics under consideration कि आपके जो माहौल होता है उससे भी असर होता है। Sometimes it does, sometimes it doesn't. But उसका बहुत बड़ा मसला basically ये है कि Christians को और Christianity को बहुत एतराज़ था सेक्स से। They are fundamentally a very sex negative religion. हाँ, वो तो abstinence वाला सीन। Abstinence वाला सीन है ना, पादरियों ने करना भी नहीं है, तभी तो बच्चे आते फिरते हैं। हाँ, राइट। वैसे ये भी अजीब है कि जितना आप अपने आप को abstain करते हैं सेक्स से उतनी आपके अंदर deviance डेवलप होती है। तो नहीं आप बच्चे आते हैं फिर हाँ, क्योंकि बच्चे आना deviance भी शुरू कर डेवलप देते होती है। बात दरअसल ये है कि गुरु को आप ये आएंगे तो वो बोलेंगे नहीं। दुनिया को आपने दिखाना अच्छा, पोजीशन ऑफ पावर का भी चक्कर है ना। दुनिया को आपने इसीलिए आई बोलना थिंक क्रिश्चियनिटी के अंदर भी उनने वो बड़े रूल्स और रेगुलेशंस लगाए हुए हैं कि आप अगर किसी के अंदर कन्फाइड कर रहे हैं तो आप उसकी शक्ल नहीं देख सकते। all of these rules are there so that power does not get misused because the padri has a lot of power, right? Yeah. And the misuse of power is something that happens I mean, basically we can shit on Europeans for all night long, Tamoor, and my night would still not be over because I am that person. मैं वो इंसान हूँ जो अमेरिका में जब मुझे कोई गोरा आके लाइन कराए तो मैं कहती हूँ जाओ जाके शराब खरीद के आओ। तो जो मेरी शराब खरीद के आता है फिर मैं उससे कहती हूँ सॉरी आई एम नॉट इनटू व्हाइट पीपल। फिर मुझे कहते हैं एक्सक्यूज मी व्हाई एंड देन आई से बिकॉज वेयर आई एम फ्रॉम आई एम व्हाइट। It means nothing but it means everything. I legitimately believe we are the hottest. Brown people are the hottest. I also have a lot of fights with my friends who are like, oh, desi men are like this. What do you think about Fair and Lovely becoming Glow and Lovely? मैंने तो उस पे एक spoof video बनाई थी शुमाइला भट्टी की। अच्छा नहीं, I should have missed this one. What happened? It was randomly on my Snapchat. I don't think I downloaded it until. Oh, you didn't put it on YouTube, ना? But that's colonization 101. Snapchat पे अभी तक डेली अपलोड्स चल रही हैं, क्या सीन है? मैं ब्रेक्स लेता रहता हूँ क्योंकि मैं फिर गलत जगह पे फॉलो कर रहा हूँ, मुझे लगा। नहीं मैं बहुत बीच में ब्रेक्स लेता हूँ। Sometimes I stop making content. I'm like तरसो। हाँ। मैं नहीं तरस दी। ये लोगों को तरसाने के लिए या अंदर से नहीं निकल रहा? अंदर से भी नहीं निकल रहा था। पाकिस्तान अगर आप देखें या बड़े सगीर पाको हिंद अगर आप देखें तो ये बड़ी होमो सोशल सोसाइटीज हैं। The friendship that you have with your male friends is never going to be equivalent to the friendship that you have with your wife. And I'm asking you to rewind 60 years back, 70 years back, 100 years back.
बेसिकली जब वेस्टर्न इंपीरियलिज्म आया और इंडस्ट्रियलाइजेशन आई और अर्बनाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया तो men had to move to cities to work. So the men that they were there with were not men that they grew up with. The men that they grew up with are the ones that they play गिल्ली डंडा with. जिनके साथ वो ट्यूबवेल के अंदर नहाते हैं, जिनके साथ वो डोगियों में जाते हैं, खेतें हारते हैं, वो उनके संगी हैं, वो उनके दोस्त हैं. ओ द मुल्क सी. अब उन्होंने शहरों में जाना है काम करने के लिए. उधर हॉस्टल में जो आपके साथ मर्द बैठे हैं वो आपके दोस्त नहीं है. यू डोंट नो देम. यू हैव टू बिल्ड दीज आर्टिफिशियल रिलेशनशिप्स. एंड दिस वाइफ विद whom you produce kids back home. कभी कभार हल्का फुल्का रोमांस भी हो जाता है, कभी कभार आपने शायरी वारी भी कर देनी है उसका, लेकिन दोस्त आपके मर्द हैं, दोस्त आपके लड़के हैं. लड़कियों की भी सहेलियाँ होती हैं, सखियाँ होती हैं. और साथ वो मेलों पे भी जाती हैं, चुटियाँ भी बांधती हैं, परांदे भी डालती हैं, चुंदरियाँ भी ढकती हैं, शादियों पर जाके नाचती भी हैं. So when this Western model came in of urbanization and people had to move to cities and they were lonely there and then depressed there. So this new idea came of flats and apartments. कि अपनी बीवियाँ भी अब यहाँ पे लाओ. And this idea कि you know ये अब आपने बीवी के साथ वो relationship आपने बनाना है जो कि पहले आपका आपके मेल पार्टनर्स के साथ था. For example shopping करने जाना, शुगल लगाना, फिल्में देखना, pleasure, leisure. Women had it with women, men had it with men. Men had it with their friends, females had it with their friends. But now we added the model of sexuality and marriage to it. No, this needs to be contained within the idea of marriage. A wife is a complete package for you. A husband is a complete package for you. Again, Protestantism. Divorce is looked down upon. एक पहली डिवोर्स कब हुई है ब्रिटिश किंगडम के अंदर? चर्च ऑफ इंग्लैंड के अंदर मेरे ख्याल से डायना की थी, जिसको इजाजत मिली थी. But I mean, even if you are But married, allow me to doesn't finish necessarily- this. Yeah. Allow me to finish this. So How's हुआ ये? divorce disconnected is what I'm trying to figure out. I'm telling you कि वो वाला आइडिया प्रोटेस्टेंटिज्म का जो जेंडर रिलेशनशिप्स का आइडिया वो यही है ना कि one woman for the rest of your life. Oh yeah. We okay. are all a fundamentally polygamous society as well. I had 2 dadis and 2 nannies. I'm sitting right in front of you in 2021. Yeah. My cousins from my second dadi, my older dadi. My dadi and my nani are both the second wives. We did not even know. Like it's family. It's not an issue at all. And I'm from KPK. KPK का तो polygamy जो हमें पता है polygamy. Like Structures क्या वजूद में आते हैं उससे? Family structures. nothing. They're both It's dadis. just the same house and Literally. yeah. Yeah. There are no separate houses or anything. No. No. हम And लोग both गाँव के both हैं. daddies get along. Absolutely. होती हैं लड़ाइयाँ. वो तो हर किसी की होती हैं. वो तो और वैसे दादी के अपने बच्चों की भी होती जिसके हैं. साथ भी आप ज्यादा वक्त गुजारोगे उससे लड़ाई वो तो दोनों दादियों की मिलकर दादाबू से भी होती है कभी कभार. दोनों मिलके कि एदा मसला है. सो ये भी तो लाइक यू नो हमारा बट जस्ट कि वो जो वेस्टर्न मॉडल ये था कि ओ मैन वुमन लिविंग इन अ फ्लैट इन लंदन वर्किंग इन अ फैक्ट्री खिदमत सर्विस कर देने. हमारे यहाँ भी फिर वाली चीज़ आई. उसमें इनिशियली बहुत प्रॉब्लम्स थे. देयर इज डॉक्यूमेंटेड लिटरेचर ऑन इट वेयर विमेन वर लाइक जब उनको बताएगा कि नहीं आपने मियाँ के साथ बैठे गप्पे लगानी है चाय के साथ तो बट इस्लाम में जो किस्म की पोलिगमी है वो जरा मेल सेंट्रिक है कि एक मर्द को बहुत सी बीवियों की इजाजत है लेकिन एक औरत को बहुत सी मर्दों की इजाजत नहीं है. Well, I disagree with it. I think that's just bullshit. I think that's just like structures that we've created using the name of Islam. Islam isn't a monolith. Islam की हजारों अक़साम है. आधे इस्लाम मुता में भी बिलीव करते हैं और मुता की बहुत ज़्यादा वैलिडेशन है आज के कल्चर के अंदर जहाँ पे लोगों को डेटिंग से प्रॉब्लम है. मुता इज़ अ निकाह where it expires after a certain time. Well, that time can be totally upon you because Islam also believes that human beings and Muslims are rational beings and they can take best decisions for themselves. You don't necessarily need a state to tell them what decisions to take for their body. Because what you do in your chardiwari is between you and God and yourself and your body. रियासत का कोई ताल्लुक नहीं है इस्लाम से और खिलाफत बनाने की जरूरत नहीं है. खिलाफत अगर आप बनाएं भी तो खिलाफत का कहाँ तक लेवल है? बिकॉज हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु डिड लाइक क्लाइंब अ वॉल एंड पीक इनटू अ मैन्स हाउस एंड chided him for drinking alcohol and then the man answered back and said कि तुम मेरी चार दीवारी के अंदर नहीं झांक सकते. and then he had to get down because the man was right. आप अपनी पुलिस को ये कह सकते हैं आज आप अपने वजीर आजम को ये कह सकते हैं कि आपको रियासत को ये हक ही नहीं है कि मेरी आप इन बाउंड्रीज से आगे हैं क्योंकि इस्लाम फंडामेंटली एंड फर्स्ट मोस्ट एंड फॉरमोस्ट प्रोटेक्ट्स योर राइट ऑफ प्राइवेसी. आप नहीं बोल सकते क्योंकि आपने एक फेक आर्टिफिशियलिटी क्रिएट कर दी है कि हमारी रियासत ही इस्लामी है. कौन सी इस्लामी है? बरतानवी तो उन्होंने सारे का सारा छापा मारा हुआ है प्रोटेस्टेंट लॉज का. आधे लॉज को जेंडर के जब आप शरीयत कोर्ट में लेके जाते हैं शरीयत कोर्ट टर्न डाउन कर देती है कि बिल्कुल सही कह रहे हैं. बरतानवी लॉज हैं ये तो इस्लाम के मुताबिक है ही नहीं. पाकिस्तान में अबॉर्शन लीगल है. डू यू नो दैट? एंड डू यू नो हु मेड इट लीगल? द फेडरल शरीयत कोर्ट इन 1990 because they said that the current laws on abortion are un-Islamic. They are heavily Protestant. But we don't talk about it openly ना. तो इस्लाम में अबॉर्शन का क्या नुक्ता नज़र है आपके? इस्लाम में अबॉर्शन का नुक्ता नज़र ये है कि कुरान के अंदर 3 से 4 स्टेट्स बयान की जाती हैं फीटस की.
तो हमारे पास अल्लाह का जब होता है, शऊर वजूद में आ जाए जब तो रूह उसके फूंकी बाद जाती है, रूह फूंकी जाती है 120वें दिन पे, अच्छा ये कहा जाता है। तो उससे पहले वो फर्द नहीं है। एंड दैट्स 120 दिन होए यानी कि 1 4 2 months 3 4 महीने 4 months सही It's a very progressive thought Yeah. because pregnancy, a lot of people don't plan it. Islam recognizes that sex का मकसद pregnancy नहीं है। ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है कि वो चादर डाल के सुराख करके बीच में तो ये आओ बच्चे पैदा करने अगर तो ये तो कोई भी नहीं कहता बेगम बच्चा पैदा करने का बड़ा मूड हो रहा है आज करिए, कौन कहता है ये? नहीं, you just have it because you like it, you enjoy it. And Islam recognizes it because Islam recognizes pleasure. And if there is a pregnancy that is unplanned, it does not want you to give birth to a child that is unwanted. So 120 days आपके पास हैं, दोनों बैठें बातचीत करें, सोचें उसके बारे में, and then you can go and terminate that pregnancy. This is Pakistan's federal Shariat court's ruling. हाँ, that's very progressive, man. 1990, not even 2021. हाँ. पंजाब की गवर्नमेंट और सिंध की गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस इशू की हुई हैं on how to conduct abortions in a fair and just manner. Yeah. That's perfectly fine. I mean, ab to if you've got the genetic evidence that the kid is going to have Down syndrome, then you should be allowed to abort it in at some way or the any other. time. Right? That is something else. Islam में इसकात हमल is abortion, termination of pregnancy, and इसकात जनीज जब रूह फूंकने के बाद terminate करना है, इस्लाम उसकी भी इजाजत देता है. उसकी भी इजाजत देता है. Yes. उसमें कौन सी सूरत हाल है? Mother's life is at risk. Okay. The baby is not viable. What viable के अंदर Viable का मतलब होता है कि वो जिंदा नहीं रहेगा पैदा होने के बाद. Okay, जो आपने चलो, जेनेटिक बातें चलो. बोली. मतलब कि Down syndrome Yes. people can be kept alive. Or for- the child is a product of rape, which is without the consent of the woman. औरत की bastard मर्जी के child. खिलाफ है. औरत की मर्जी के खिलाफ है. औरत की मर्जी के खिलाफ है. तो अच्छा ठीक है. क्योंकि जिस्म उसका है. Bastard बहुत सी conditions. क्योंकि माँ का बहुत दर्जा है इस्लाम में. क़यामत के रोज मुसलमान जो तमाम इंसान माँ के नाम पे उठाए जाएंगे. If you don't know, बाप के नाम पे नहीं उठाए जाएंगे, ये कॉन्सेप्ट है. So she is the one who basically gets to choose. लेकिन बात वही है ना, हम लोग रहे गोरों के अंदर इतना ज्यादा, और हमारे यहाँ जिन अशरफिया को पढ़ने का मौका मिला वो सारे गोरे के गुलाम थे. उन सबको सर के टाइटल मिले हुए थे और वो सब चौधराहट के अंदर आए और वो सब पाकिस्तान की हुकूमत का हिस्सा बने और फिर उन्होंने हमारा सिलेबस बनाया. तो हम लोग उसी सोच के अंदर कैद रह गए. अब का जो पाकिस्तान है, आई थिंक आई एम ऑप्टिमिस्टिक अबाउट पाकिस्तान, बट देयर इज अ कंडीशन टू इट. अगर हम बड़ा दुश्मन पहचान लें, और बड़ा दुश्मन हमारी कॉलोनाइजेशन थी, अभी तक हमारे अंदर कॉलोनियल एंजाइटी है. लेकिन ये बड़ा दुश्मन पहचानना इज लाइक यूनाइटिंग द पीपल, एक ही चीज की नफरत के खिलाफ. लेट्स इंडिजिनाइज. जिस तरह यहूदियों के खिलाफ एक जमाने में यूनिफाई किया था हिटलर ने. किसके खिलाफ करना है? ब्रिटिशर्स के खिलाफ. अपने जवाहर यार वापस चले गए यार, पुरानी बात नहीं गए, हमारा सारा सामान उधर पड़ा हुआ है. हाँ तो अब वो क्या वापस लेना? हाँ, खुद भी कुछ कर लेना. मलका एलिज़ाबेथ हमारी हीरे पहन के बैठी हुई है. कुछ इन्वेंट ही कर लें, कोई थोड़ी सी अपनी तालीम बड़ी कर ले. नहीं करना चाहते हैं वो. तो हमारी हुकूमत के अंदर आपका मॉडल ही सारे का सारा कॉलोनियल है, एंटी नेटिव है कि इन्हों नहीं समझ आती, इन्हों गरीबां नूं, ए लोकां नूं. आपके पास जब नया पैंडेमिक आया तो इन्होंने जो BISP बनी, नज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, व्हाट इज इट कॉल्ड नाउ? खान साहब, अच्छा वही सपोर्ट प्रोग्राम चेंज हो गया है. हाँ, उसका नाम चेंज हो गया ना. इट्स लाइक खान साहब सेल्फ मास्टरबेशन प्रोग्राम और मास्टरबेशन टू स्ट्रोक खान साहब ईगो प्रोग्राम, समथिंग अलोंग दोज लाइंस. आई थिंक ये नाम उसका बन चुका है. Again a very masculine phenomenon, again very homosocial. How all of these PTI men gather around Khan Saab and stroke him to make him feel good, right? कभी आप गौर करें कि मर्दानगी बड़ी होमोसेक्सुअल है. Come to think of it, सारे मिलकर यार तू यार क्या तेरी गड्डी, यार तू निकल गया, यार क्या यार तू यार. There's the चमचागिरी and चमचागिरी, male worship. सबको बुंड मरवाने का शौक है. एट द एंड सबने गोद में जाके बैठने उसे एक लड़के के. शेरों में भी ऐसा ही होता है ना, वो एक बड़ा शेर होता है जो जाके बंदी चोद तो मैं लेता है, फिर बाकी सारे उसके पीछे यही तो मैं कह रहा हूँ कि तुसी सारे गांडू हो. तुसी सारे गांडू हो. ते सारा मुल्क ही गांडू है. ते गांडू नाल तुहानू मसला की है फिर? ये दसो. तुसी सारे गांड मरान दे शौकीन. फर्क सिर्फ ये कि आप मरवाना चाहते हैं किसी बहुत बड़े से, नहीं मैं ओदे कोल मरावांगा कि मैं उसकी गोदी में जाके बैठूंगा. ये है कि नहीं? सारे चमचे ओदी मारांगा. पिचिंग एंड टेकिंग के अंदर भी उल्टा चल रहा है. हाँ, वो तो नहीं कि एदी मारांगा ते एनू देवांगा. ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਚੰਗੀ है, ਤੁਸੀਂ लो. ये हिसाब है बेसिकली यहाँ पे. तो ये अभी लोगों को रेनबो फ्लैग से इतराज है और LGBT रेनबो फ्लैग तो सुपा हुआ कि ओ है भी बकवास आप लोगों ने सबने बनाई हुई हम लोगों ने. हाँ, LGBT तो यहाँ पे अनलेस कोई इंडिजिनस तरीके से है, क्योंकि वो बड़ा वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है ना, तो उसको एक्सेप्ट करवाना बड़ा मुश्किल है. ये है इंडिजिनिटी. हाँ, ये है. ख्वाजा शेरा कम्युनिटी इज गॉट अ अमेजिंग मिथोलॉजी बिहाइंड इट. एब्सोल्युटली. एंड हमारी वर लाइक आवर बिल, आई गेव द फर्स्ट प्रेजेंटेशन to the youth caucus in parliament in 2016, and what's fascinating is that the chair of the caucus was from PMLN, Shiza Khwaja, and the co-chair was a PTI guy, so opposition. So two right-wing parties from the government benches and the opposition parties
spearheaded the transgender bills movement. And I went and I gave the presentation, and the only criticism Why that this change came, of heart for the right wing? because यार मेरे ख्याल से पाकिस्तान का राइट और पाकिस्तान का जो लेफ्ट, खैर लेफ्ट तो रहा ही नहीं है. I mean, क्या रह गया लेफ्ट हमारा? Who the fuck is left now? बहुत देर राज किया लेकिन. हाँ, लेकिन मोहसिन दावड़ इज लेफ्ट, आई वुड से डेफिनेटली लेफ्ट. केपीके के अंदर थोड़ा बहुत लेफ्ट आपको नजर आता है, वेस्टिजेस उसकी जो नजर आती हैं. पाकिस्तान का जो राइट विंग इज जस्ट जनरली एन इंडस्ट्रियलिस्ट मेंटालिटीज ना, व्हाट वी वुड कॉल इट नाउ, जो पीटीआई की और जो पीएमएलएन की है. दे वर वेरी नाइस अबाउट इट, एंड द रिलीजियस बॉडी एंड द काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी वेंट एज फार अहेड टू से दैट ख्वाजा सरा पीपल हैव द राइट टू डू अ निकाह. क्योंकि किसी के साथ जिंदगी गुजारना, किसी के साथ मोहब्बत बांटना एक हक है हर एक फर्द का, हर एक इंसान का, और इनको ये भी मौजूद है. लेकिन इस्लामाबाद की गले में जो बचा डालने वाली आंटीज को बहुत एतराज़ था इससे, एनजीओज वाले को और ब्यूरोक्रेसी वालों को. मैंने बोला इससे तो गेज और लेस्बियंस भी अंदर आ जाएंगे. पता नहीं ये क्या एक उन्होंने एक आर्टिफिशियल खौफ फैलाया हुआ है यार. पता नहीं, ट्विटर के ऊपर आप देखें अभी अली सेठी की जो वीडियो आई थी रंग, जिसके अंदर मेरे ख्याल से उसमें बेसिकली लव इन ऑल इट्स फॉर्म्स, मतलब कि औरत मर्द के दरमियान, बूढ़े आदमी और बूढ़ी औरत के दरमियान सेल्फ लव, शीशे में देख के नार्सिसिस्टिक लव, ख्वाजा सिरा कम्युनिटी के अंदर प्यार, होमोसेक्सुअल लव, सारे इन ऑल इट्स फॉर्म्स उसके अंदर डिपिक्ट किया. ठीक है ना. और गाने का नाम रंग है. हाँ. और मतलब कि उस फर्क रंग है ना. तो क्या हुआ उस वीडियो प्यार के एतराज हुआ उस पे? वो उसके ऊपर इतना बैकलैश आया. स्टार्ट कहाँ से आया? Because I believe it started पाकिस्तान से स्टार्ट आया इस तक. नहीं, कहाँ से, कौन लोग थे वो? ट्विटर के ऊपर कुछ अनोनिमस, जो तो पता है निकाब के पीछे बंदा बैठा होता है, उसको कोई रिस्पांसिबिलिटी, क्योंकि आजकल मेरे साथ जिम्मेदारी नहीं होती. दिस इज व्हाट आई कॉल हेटेरोनेशनलिज्म. हेटेरोनेशनलिज्म. यस, ये लोग नेशनलिज्म को और हेटेरो को आपस में मर्ज कर रहे हैं कि ये पाकिस्तान नहीं कि ये पाकिस्तान, और या बाय डिफाइनिंग पाकिस्तान क्या नहीं है, बिकॉज वी आर एन आइडेंटिटी ऑफ एक्सक्लूजन ना, कि पाकिस्तानी कौन है जी, हम इंडियन नहीं है. हाँ. तो आप कौन हो यहाँ, सानू नहीं पता, क्योंकि पंजाबी तुसी बनना नहीं. लेकिन इंडिया में भी तो बहुत बैकलैश आया था जब वो करण जौहर वाली चीज हुई थी विद ऑल इंडिया बच्चों. इंडिया इज अ वेरी फक्ड अप कंट्री. आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ इंडिया. इंडिया की जो पूरी प्राइड मूवमेंट है और उनका 377 का हिंदुत्व तो खैर चढ़ गई लान पे ना, वरना भी आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ इंडिया. आई वाज अ फैन ऑफ इंडिया अंडर जवाहरलाल नेहरू इनिशियल जमाने बहुत पुराने वो. उसके बाद मैं कुछ भी नहीं कह रहा. और मनमोहन सिंह ने हल्का फुल्का थोड़ा बहुत अपनी नर्डीनेस दिखा के थोड़ा बहुत कुछ सीधा कर दिया, उनका काया उनकी सीधी कर दी. मगर जिस दिशा पे इंडिया निकल पड़ा हुआ है, इट्स गोइंग टू बी द नेक्स्ट रशिया और द नेक्स्ट अमेरिका अंडर ट्रम्प. बट कमिंग बैक टू पाकिस्तान, हमारी तो एक आइडेंटिटी ऑफ एक्सक्लूजन है कि जी ये पाकिस्तान नहीं है. तो पाकिस्तान क्या है? आप बताएंगे कि पाकिस्तान क्या है और आप कौन है? क्यों? क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि मैं खुद ही मलन डालने का शौकीन. 1.5 इंच की मस्जिद है ना. हाँ, तो ये है, ये नहीं है. So even these people don't call themselves straight. They pretend or they imply heterosexuality by rejecting anything that is non-heterosexual. So तो heterosexuality बजाते खुद एक identity of anxiety होगी फिर. कि आपको औरों को देख के आपकी इतनी फट रही है, आपको इतना डर लग रहा है, आपकी इतनी हिल गई है कि आपको नहीं, ये नहीं है पाकिस्तान, मैं हूं पाकिस्तान. भी तानू किसी डके है आपको कमी है, आप करवाएं अपना रिश्ता, तुसी जाओ, तेनू किसे डके है? आपको तो किसी ने भी नहीं रोका. माधुलाल हुसैन भी तो यहाँ पे ही थे, वो किसी और पाकिस्तान में थे. वो ये साथ है हमसे 2 किलोमीटर, एक बल्कि 500 मीटर दूर वॉक करके हम जा सकते हैं उनके मज़ार के ऊपर. जहाँ माधुलाल को हुसैन से इतनी मोहब्बत होगी कि उन्होंने अपना नाम ही हुसैन रख दिया. क्या बात. जो कॉन्सेप्ट रांझा रांझा कर दी, नहीं मैं आपे रांझा होगी, क्योंकि मोहब्बत तो आप किसी से भी कर सकते हैं. इसमें होमोसेक्सुअल तो बहुत बाद की इन्वेंशन है. इनफैक्ट हेटेरोसेक्सुअल इटसेल्फ, यू वुड बी इंटरेस्टेड टू नो, वाज अ नेगेटिव टर्म इनिशियली व्हेन इट वाज कॉइन्ड. इट वाज कॉइन्ड इन इंग्लैंड and it explained men or women who were very sexually active or who were sexually active outside marriage. Because every person is sexual within marriage, but heterosexual is कि वो लड़कियों के साथ hypersexual philandering man. Yes, exactly. That was a very Western thought. So sex is tied with the idea of love, when in fact in South Asia it isn't. Yeah. I have said I love you to so many of my male friends. तो ये feed कहाँ से हो रही है? I mean, I don't see, अगर हमारे cultural भी इसके अंदर roots नहीं है. I saw so much backlash on Twitter. Yeah. एक पॉइंट पे जाके अली सेठी ने वो वीडियो पाकिस्तान से उतार दी. कोई भी बंदा देख सकता है, पाकिस्तानी नहीं देख सकता. अली सेठी को चाहिए कि मुझे कास्ट करें. वैसे you would have fit in really well. You should watch that video. You will really enjoy it. I will. And he only has the audio version available for Pakistan YouTube. And the rest of the video itself is not available on Pakistan. आपने गाना सुना है, आप सुने, आपके लिए abstract metaphors के अंदर ये चीज़ exist कर सकती है. रंग का मतलब क्या है? आप visuals नहीं बर्दाश्त कर सकते, आप वो सुन सकते हैं. लेकिन इतना backlash आना और उसके ऊपर उसको बंद कर देना. I guess he comes from a political background as well. His parents and his family. Absolutely. सेठी है, PMLN का supporter है, PTI के troll bots होंगे. I've done whole ass information data science on it.
मेरा पूरा पेपर है, उसके ऊपर मैंने पब्लिश नहीं किया अभी तक, on how Pakistani state, and by state I mean the political state, is using disinformation and misinformation as a political campaign to undermine other people. Because Maryam Nawaz was one of the first very active Twitter people. So जो fifth generation warfare का जो concept है, now they've introduced Zaid Hamid through another concept, the sixth generation warfare. It is all stupid because they're fighting their own people. A country is known for its diversity. ट्रम्प के खिलाफ कितने एहतजाज निकले हैं, बर्बाद हो गया अमेरिका. पुतिन के खिलाफ कितने एहतजाज निकले हैं, बर्बाद हो गया रशिया. It's a state of anxiety. It's a state made of anxiety, which is fundamentally a colonial state. So where is it coming from? मैं आपको जवाब, because it's a beautiful question कि ये एतराज़ कहाँ से आ रहा है? It is coming from sex negativity, plain and simple. अब उसमें आप इस्लाम का रंग लेकर आएं, कि बरतानिया का रंग लेकर आएं, कि ये रंग लेकर आएं, कि वो रंग लेकर आएं, वो भी एक अलग रंग है ना, एक अली सेठी के रंग है और फिर एक सेक्स नेगेटिविटी के रंग है. Fundamentally, our society is a very sex-afraid society. Anything that they can even passively associate with sex. लेकिन लड़कियों को जीन्स पहनने से यूनिवर्सिटियों के अंदर क्यों मना किया गया at the end of the day? वो आपने अभी रिसेंटली देखा कि एक लड़की ने लड़के को प्रपोज किया था और उसको स्कूल से उन्हें एक्सपेल कर दिया. माँ क्यों कहती है बच्ची को कि तुमने 6 बजे से पहले घर आना है, 4 बजे से पहले घर आना है, कि वर्जिनिटी ना लूज हो जाए. Our entire society is built on rescuing people from sex and making them have sex of our choice with a person of our caste, of our choosing, in a socially celebrated phenomena जहाँ पे 600 लोगों को बोटी भी खिलाई जाएगी कि आज हमारी बच्ची जुआई जाएगी. So fundamentally अगर आपको एतराज़ कर रहे हैं तो हमारी सोसाइटी एक बड़ी डिस्गस्टिंग सोसाइटी भी है. एक तरफ आप सेक्स से भागते हैं, लेकिन जिस रात आपने बच्चा बच्ची जुआने होते हैं उस दिन आप पूरे मोहल्ले को बुला के, पूरे गाँव को बुला के, पिंड को बुला के, तो आप 600 लोगों को बोटियाँ भी खिलाते हैं. और अगर पैसे कम खिलाए जाएं, लोग एतराज़ भी करते हैं कि आज सुहागरात है, आज हमें बोटियाँ कम मिली हैं. तो पहले झांकिए अंदर कि 2021 के अंदर आप कहाँ पे खड़े हुए हैं और आपको मसला क्या है. खुद ही किसी और की लान किसी और का, आपको मसला क्या है तीसरी जगह. सवाल ये भी बनता है. बट देन अगेन इट गोज बैक टू अ वेरी इंडिविजुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट. सो आई थिंक पाकिस्तानी पीपल, ऑल ऑफ अस नीड टू डू अ लॉट ऑफ सोल सर्चिंग. एंड आई थिंक जिस दिन हम लोगों ने अपनी एक डीकॉलोनाइजेशन की प्रैक्टिस शुरू कर दी, जहाँ पे हम लोगों ने रिकॉग्नाइज किया कि जो पूरी थॉट्स हम लोगों को दी गई हैं, ये सेक्स नेगेटिविटी की एंड ऑल ऑफ दिस इन द नेम ऑफ कल्चर एंड इन द नेम ऑफ सिविलाइजेशन, कि नो सिविलाइज्ड पीपल डोंट डू दिस, तो जानवरों वाली हरकतें हैं. This is all a very fucked up Babu Saab and Meme Saab wala concept, which is not indigenous to us at all. At all. We are not this. If you want to be this, be this. Other people who don't want to be this, they have all the right. And they don't have the right because Norway के अंदर ये होता है, या Denmark के अंदर ये होता है. They have all the right because हमारे यहाँ ये होता है और हम ये हैं. And we are here to stay. हमारी ज़बान भी अपनी, हमारा कल्चर भी अपना, हमारी तारीख भी अपनी. अगर आपने बरतानिया की विक्टोरियन वैल्यूज़ को इस्लाम का रंग दे के हमारे ऊपर इम्पोज करना है, तो साड़ी जूती खाओ फिर आके. Well, apart from colonial, I often wonder, क्योंकि इसके हयातियाती भी वजूहात है ना, कि जिस तरह अगर मिसाल के तौर पे अगर औरत को हमेशा पता होता है कि बच्चा उसका है, लेकिन मर्द को नहीं पता होता क्योंकि उसके पेट में नहीं वो बच्चा पैदा हो रहा, तो इसलिए मर्द ज़्यादा पोजेसिव भी पैदा होता है और मर्द ज़्यादा इसलिए अपना पावर एग्जर्ट भी करता है उस इंसान के ऊपर और उसको फिर अपने घर में बंद भी करता है, किसी और मर्द से मिलने भी नहीं देता, जस्ट बाय द ऑफ चांस. अब मेरे लिए वो हयातियाती, वो जो एवोल्यूशनरी जो है ना, I always go back to the evolutionary thing. It's sex negativeness almost. But you do realize that this is a very modern phenomenon as well. This idea of the family unit. मेरा बच्चा. मेरा. हाँ, पहले तो ट्राइबल होता है, हर कबीले का बच्चा होता था. ट्राइबल में तो exactly this child is raised by the tribe. तभी तो हम लोग सारे ही बाप हैं. धरती माता होती है. एक माँ है लेकिन सारे ही बाप. धरती माता होती है क्योंकि औरत प्रोड्यूस करती है. मादा हम हमेशा कहते हैं the one who reproduces. So it was thought that women have this magical property of reproducing. The god of reproduction is always a woman. Even in ancient I often wonder, Arab maybe culture. that's a Christian thing as well. Maybe that's your child. The family structure जब हम ट्राइबल स्ट्रक्चर से निकले थे, क्योंकि ट्राइब्स के अंदर यही था ना कि सारे मर्द, अब अगर आप बंदरों टाइप हैवानी इंसान वाले लेवल पे जाएं, तो हैवानी इंसान के अंदर ये था कि एक औरत थी और वो बहुत ज़्यादा सेक्स एंड रिप्रोडक्शन. नो, एक्चुअली सेक्स एंड रिप्रोडक्शन वाज नॉट लिंक्ड. पेट्रियार्की की जेनेसिस तब हुई है जब सेक्स एंड रिप्रोडक्शन वर लिंक्ड विद ईच अदर एंड sex became privatized. Sex became an affair of this person and this person, and it has to be regulated. But sex is reproductive for a lot of monkeys and apes, right? Absolutely, totally. But then again, that's again a very evolutionary psychology wali thought. I do disagree and do have my issues with that school of thought. Where do you think that the monkey separated from the man? Monkeys never separated from the man. Evolution doesn't work that way. Evolution doesn't work as this. Evolution is a tree. Because if you don't believe in evolution. I do believe in evolution. Yeah, in evolutionary psychology. But I disagree with the evolutionary psychology school of thought. Okay. I believe in evolutionary psychology. Okay. It exists within us. We breed. There's certain schools of thought. Medulla oblongata,
देख मेडुला ऑब्लंगेटा हमारे ब्रेन का नीचे वाला पोर्शन है जो कि रेप्टाइल्स में भी मौजूद है, जो कि जूनियर मैमल्स के अंदर भी मौजूद है. एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी वाला कॉन्सेप्ट ये है बेसिकली कि ह्यूमन बीइंग्स आर द मोस्ट असेंडेड मैमल एंड एवरीथिंग दैट कम्स फ्रॉम विद इन अस हैज टू बी लिंक्ड विद द आइडिया ऑफ रेप्लिकेशन एंड प्रोक्रिएशन. एंड बाय द वे यहाँ पे हम डिट्रैक्ट हुए थे पहले अपनी बात करते हुए. दिस बेसिकली हैपेंड बिकॉज ऑफ क्रिश्चियनिटी कि जब लेट 1900s के बाद जब सेक्स पे रिसर्च होनी स्टार्ट हुई, सो ऑल ऑफ दीज sexual researchers had to position themselves some way. And a lot of this sexual theory basically came from legitimizing monogamy and legitimizing the man, woman, kids, family unit. There were very few who were aware of other units or other variations and were able to go beyond the current family unit norm. So they basically just kept on reproducing what the church was already telling them, but using scientific terms. So this idea that, oh, a man wants to fuck so many women because he has more sperms, and a woman only wants to get fucked by one man because she has only one egg. Is basically science being used to legitimize what the society has constructed. Or is it just taking empirical data that a man masturbates 6 or 7 times a day, whatever, depends on the man, right? A man masturbates a lot more because he's producing a lot more sperm, and the women are scarce in the and also because women are afraid, because women are told not to touch their vaginas, because if they do that they will cut their hymen and then they will not bleed on the night of the marriage and then they will be killed. And then they will be killed. Yeah. So you have one group of human beings who can masturbate for pleasure and another group of human beings that can't touch itself because of the fear of death. How the fuck do you compare that empirical data? And that is fundamentally well, my if they issue go for a clitoral orgasm, then you don't necessarily have to but वो go तो inside. हाथ नहीं लगा सकते. बहुत से कल्चर्स के अंदर तो नहीं उसको काटा, वो तो बुरी चीज है, उसको हाथ नहीं लगाना. हाँ, sexual education is limited for women. उनको क्या बताएंगे बाकी. हमारे यहाँ तो हमें नसीम भाई बता देते हैं मोहल्ले वाले कि एन उफाड़ एंज कर. तो उन्होंने क्या शकीला बाजी बताएंगी कि थे उंगली ला छोला वेख तो छोले नु हला. I wish there were more Shakila Bajis. That would help, right? I mean, but more, we should not have this conversation as two men. I mean, yeah, that's another problem. We need to have a woman here, but then she would be really shy because she's a product of. I'm a woman. You're both? I'm a woman right now. How do you identify? What is your? I don't believe in identities for me. I'm a very quantum person. If I have to give myself a name, I would say I'm quantum gender. Quantum gender is like you exist in two places at one time, like a quantum particle. Absolutely. I can be in both places. And if you tell what it is, then it is not that anymore. And if I reflect a man towards you, like the way I look at you is... I am a very good man. If I go like, oh, mard hai, so then you'll become a mard. Sure. But if I mirror a woman to you, then you'd be like, you absolutely become a woman. And basically people, I never really had issues with people unless they were legitimately... You're an empty vessel that will inhabit any gender. Absolutely. For me, gender is performative. My base gender is nothing. So for me, gender is actually very performative. For me, masculinity is not that's what I was saying. Queer as a verb as opposed to queer as a noun. I am not a man. I can be manly. I can espouse manhood. And I do that. And I do that very fucking well. It's very effective. I mean, I got into the army for crying out loud. Give me a team of 10-11 people and I'd lead them like this. मैं उनकी बूंद लेकर रखूंगा. मुझे कोई मसला नहीं है. I can shoot. I've kicked out my chutiya brothers-in-laws out of the house after holding them from the Gareban. मुझे कोई मसला नहीं है. My drag videos are there for my entire family to see. But vulnerable भी हो सकते हो साथ-साथ. हो भी सकता हूँ. For me, femininity also exists within me. It comes in a lot of other forms as well. So for me... But femininity is more performative, huh? Both are actually performative. My baseline is, anybody asks me, are you a man or a girl? I'm like, I don't know. मैं यूँ बोलूँगा कि does it matter? But there are situations where I know that I have to be a man. So I will say, अच्छा मैंने इस दफ्तर जाना है, वहाँ पे जाके ये काम करवाना है, वो लोग बड़े बदमाश हैं, तो मर्द बन के जाना है. तो उस वक्त आप खड़े हो जाएंगे. Absolutely. मर्द के तौर पे. Yeah, and if I have to interact with a group of people where I know that I have to be very sensitive and very thoughtful and very mellow, very submissive in a manner. Submissive not in a bad way, by the way. So then I will say, अच्छा, okay, Moez, channel your that side. I'm not associating it with femininity, to be fairly honest. यार ये ज़बरदस्त एक बात है कि you got एक जज्बात के जो रंग होते हैं और जिन्स के और सिंफ के भी सारे रंग हैं, उस पूरे स्पेक्ट्रम का एक्सेस होना, और उसमें से जो चीज़ की जब जरूरत हो वो अंदर, क्या बात है यार. मैं चाहे मास्टर अपनी स्पोर्ट्स बाइक पे जाता हूँ. वाह. या अक्सर का आई मेकअप करके. तो वो क्या है? ये खुसरा है, ये खुसरी है, ये लड़का है, ये लड़की है, ये क्या है? अच्छा, लोगों को कंफ्यूज करने से कुछ मजा आता है थोड़ा? नहीं, कोई एक्चुअली नो. लेकिन जब वो हो जाते हैं फिर मजा आता है. फिर मजा हो जाता है कि हो गए हो, अच्छा होड़ में एंजॉय करांगा. कंफ्यूज्ड, इंटेंशन ये नहीं थी. इंटेंशन ये नहीं थी. इट्स मोर ऑफ अ कॉन्सिक्वेंस थिंग. सो उस दिन किसी ने मेरी वीडियो पे कमेंट भी किया कि वो इधर खुसरियों की पार्टी हो रही है, खुसरों की मीटिंग हो रही है. मैंने कहा अपने अबे भी भेज.
और है कहने तो किसी ने इस तरह की ना बचौतियां लिख, एंड आई एम आल्सो बाय द वे नॉट वन ऑफ दोस सेलेब्स और वन ऑफ दोस इन्फ्लुएंसर्स को जो नेगेटिव कमेंट्स का रिस्पॉन्ड ना करे, मैं जाके वहां ही आता हूँ। अच्छा मैं तो नहीं, मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। आई एम नॉट वन ऑफ दोस के नो आई एम बेटर देन यू, आई विल नॉट इंडल्ज इन पेट्रियार्की, नो आई विल कॉल यू पैंचोद एंड माचोद यार, लेकिन वक्त भी तो जाया होता है ना उन चीजों लेकिन थोड़ों से पे, एक दो पे सिर्फ हाँ। इबरत का निशान वो बनाते एक हैं। अगर बैठा हुआ है इबरत का निशान, दो तीन को मैं इबरत का इम्तिहान निशान है। बनाता हूँ कि बाकी तुसी वेख लो, फिर तुसी आओगे तो मैं ये आके भेजांगी। हाँ, एक कुड़ी ये दी है। पता नहीं, मतलब कि मैं अपने आप को पाता हूँ इस तरह की सिचुएशन में कि अगर मुझे कोई ज्यादा ही कोई बथेरी गालियां दे रहा है ना, हाँ, ये ज्यादा ही हैवी हो रहा है, तो मैं उसको जवाब जब देने लगता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मेरे अंदर जो गुस्सा पैदा हो रहा है उससे मैं एक ऐसी कैफियत में पहुंच रहा हूँ कि उसमें मेरा फायदा नहीं है। हाँ, तो मैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ना हाँ, इन चीज़ों में जवाब नहीं दे रहा होता। बट आई ऑफन फाउंड कि मेरे अंदर कुछ एक लिमिटेशन है कि मैं वो सारे रंग एक्सेस नहीं कर सकता जेंडर के। एंड जब मैं फेमिनिन रंग को एक्सेस करता भी हूँ अपने अंदर, तो वो एक कैरिकेचराइज्ड एक्सट्रीम एक एग्जैजरेटेड वर्जन होती है। So what? I mean, there's nothing wrong about That's it. a fun place to start with. It's a great place to start with. Yeah. I often think it's an empathetic place to start with. Absolutely. कि मतलब कि आपको हमदर्दी तभी हो सकती है जब आप समझने की कोशिश करें ना हाँ, इस चीज़ को, और उसके Absolutely. अंदर और अपने if you can inhabit that Yeah, and live it, yeah. I can last 10 minutes Then you max, you know, कि 10 मिनट बाद मैं कहूँगा ओ मैं मूरू, हाँ, और मैं फिर वापस मूरू की yeah. रूप और शख्सियत में आ जाऊंगा। अच्छा, I thought you by 10 minutes you went. नहीं 10 मिनट्स वो वाले 10 मिनट पता नहीं, वो मैंने कभी ट्राई नहीं किया, लेकिन वैसे जस्ट बीइंग इन दैट कैरेक्टर, मेरी एक कैरेक्टर है रोंदू, वो हर वक्त रोती रहती है, Cute. तो उसके कैरेक्टर के अंदर उसकी मैक्सिमम मुलाकात करानी चाहिए शुमाइला भट्टी के साथ। उसने बोले की मजा तुम्हारे नाल कुड़िए। बिकॉज देखो एट द एंड ऑफ द डे अगर हम यकीन करते हैं कि जेंडर परफॉर्मेटिव है, आपको मर्दानगी और जनानगी करके दिखानी होती है, राइट? टांगे खोल के आप बैठते हो तस्वीर खिंचवाते हुए, जब यारों में बैठोगे या नई जगह मीटिंग करने जा रहे हो तो आप यूं होके बैठेंगे, जरा पहले बात अस्सलाम वालेकुम सर मेरा आपसे ये काम है, ये वाली आवाज आपने निकालनी है। इवन मेन नो इट, दे डू परफॉर्म मैस्कुलिनिटी। ऐसा है, बिल्कुल एग्जैक्टली, कि आप रो और सुना यार कैसा है, चल दिल है, सुना यार कैसा है, सिगरेट तो करा जरा, सिगरेट करा यार जरा, बच्ची चेक कर उसी की सिगरेट ले ली उसी के हाथ से, right? So it is performative at the end of the day. It means you can perform femininity as well. And if you are choosing not to, it means that you are recognizing that it is bad. तो फिर तो आपको औरत मार्च वालियों से मसला नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो यही कह रही हैं कि अगर के दोनों जिन्स बराबर हैं और अगर हमारे बराबर के हकूक हैं, वो ये नहीं कह रही कि औरत कमज़ोर है, वो कह रही कि जनानगी बुरी क्यों है। फिर अगर औरतों से मसला नहीं है तो जनानगी से मसला क्यों है? बट इस तरह की स्टेटमेंट से आपको ये नहीं लगता कि रद्द अमल की कैफियत शुरू हो जाती है कि एक तरफ वो एक बात कर देता है तलख कलामी के साथ और दूसरी तरफ से वही तलख कलामी के साथ जवाब आ रहा होता है, लेकिन इसके अंदर मुझे एम्पैथी प्रमोट होती नजर नहीं आ रही। अभी पाकिस्तान के अंदर करोड़ मर्दों को एक दूसरे से प्यार है, किसी को कोई मसला नहीं है। हाँ, सारे मर्दों को जो देख रहे जिनको एतराज है उनको अपने दोस्तों से प्यार है। हाँ, प्यार तो प्यार है, प्यार तो प्यार। ये प्यार का गांड मारने के साथ लिंक किसने पैदा किया? ये कोई अजीब कनेक्शन है। रोमांस, लव इज ऑटोमेटिकली इक्वल टू सेक्स, एंड दैट इज व्हाट आई कॉल फंडामेंटली सेक्स नेगेटिव सोसाइटी। ये हम लोगों ने सेक्स सवार किया अपने दिमाग पे, सवार है, हमें हर चीज में सेक्स नजर आता है। जीन्स के अंदर सेक्स, टखने नंगे होने के अंदर सेक्स, लड़कियों के गले में दुपट्टा करने में सेक्स, पढ़ने में सेक्स, और दूसरे नुक्ते नजर से देखना भी नहीं आता ना। हाँ, अगर आप मर्द हो तो आपको देनी आती है, मुठ मारना, लेकिन आप ये नहीं सोच सकते कि लेना कैसा होगा। एब्सोल्युटली, क्योंकि किसी को लेनी तो पड़ेगी ना, आप जो अगर दे रहे हो। हाँ, तो वो दो पार्ट्स ऑफ द इक्वेशन तो एग्जिस्ट करती हैं। yeah. तो इफ यू आर पिचिंग देन यू कांट रियली एम्पैथाइज विद टेकिंग। Yeah, because sex is that identification and not being able to empathize is precisely what heteronormativity is all about, that sex is equal to conquering, कि आपने ली है। It means it's a bargain, it's a trade, somebody is giving and you the purchaser, and they are the trader. That's a pathetic way of looking at sex, particularly in the modern world, and in also in the spiritual world. हम वो कल्चर है जहाँ पे कामा सूत्रा लिखी गई थी किसी जमाने में। हम वो कल्चर है जहाँ पे वो कल्चर तो हम नहीं हम मान सकते ना, हमने तो अपनी तारीख रूमी जो है वो शम्स तबरेज के इश्क में निकल पड़े, क्योंकि उनके शम्स तबरेज के ऊपर उनके बच्चों ने दीवार ढा दी थी कि हमें आपका ये मोहब्बत, आपकी मोहब्बत पसंद नहीं है। माधु लाल और हुसैन की मोहब्बत का सबको पता है, हर कोई आज भी आके चढ़ाता है, मगर वो एंटी नेटिव है ना। सूफी इसके हम खिलाफ हैं, ये गंदे लोग जो मज़ारों पे जाते हैं। व्हाट एल्स इज वहाबिज्म? व्हाट वी टॉक अबाउट, यही तो है एंटी नेटिविटी। सो इंडिजिनाइज जितना हम अपने आप को करेंगे, मेरे ख्याल से वी नीड टू हैव लाइक अ गो बैक मोमेंट एज वेल,
that is going to be fundamentally useful for most of us. But I think all of these fundamentally come from the fact that we are a very sex negative society, and we are so sex negative कि हम सब ने अपने सरों के ऊपर सवार कर लिया हुआ सेक्स को, और हमें हर चीज़ के अंदर वो नजर आता है। लड़की गाड़ी चलाए तो वहाँ पे भी है। किसी और भी ने वीडियो निकाली थी कि लड़कियां गाड़ी चलाएंगी तो वो लेस्बियन हो जाएंगी, क्योंकि गाड़ी के इंजन की वाइब्रेशन उनकी फुर्ती में लगेगी तो वो वगैरह। यानी कि चुतियाब की आप हद चेक करें। क्या हो रहा है यार? तो आप मुझे बताएं कि बगैरत वो लोग हैं, बगैरत आप हैं, कंजर वो या कंजर आप हैं। बस फर्क सिर्फ ये कि आप वही कंजरापा सारा करते हैं मजहब का नाम इस्तेमाल करके। डिफरेंस सिर्फ ये है। सो मसला मेरे ख्याल से लेकिन सेक्स पॉजिटिव का दूसरी तरफ ये भी होता है ना, आज़ादा जिनसी ताल्लुकात की वजह से जो आपका खानदान का इदारा है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा। खानदान का इदारा तो आपकी सास और ससुरों ने बर्बाद किया हुआ सबसे पहले। वो तो सेक्स करके तो उन्होंने बर्बाद नहीं किया। जब आपको बोला गया कि तुम्हारी बीवी आज 12 बजे सोकर उठी या 10:30 बजे नहीं सोकर उठी, आज पराठे के अंदर लाछे कम थे, चाय के अंदर चीनी ज्यादा थी, मैके गई है तुमसे पूछ के नहीं गई है, तो वो तो सेक्स ने बर्बाद नहीं किया। फैमिली सिस्टम तो वरना भी आपका बर्बाद है। कोई कितना कोई निचोड़ दिया उसके अंदर से। लड़की के पास जायदाद जरा सी कम हो, लड़के के पास जायदाद जरा सी कम हो, तो आप लोग मोहब्बत तस्लीम नहीं करते कि रहना तो सी ओहदे नाल है जो कि ज़मीनें लेकर आए, जो कि जेज लेकर आए। तो किस फैमिली सिस्टम की आप बात कर रहे हैं? क्या ही हम लोगों ने एक फेक कंजेक्चर्स हम लोगों ने क्रिएट किए हुए हैं बुलशिट किस्म के, और उसके ऊपर हम लोग आगे सेक्स को समहाउ डिक्लेयर करते हैं कि वो उसके अंदर कोई नेगेटिव चीज़ है। So I just think it's like a lot of deep reckoning and deep introspection that is needed. And I do think we are in the right way. We better do it in the next 7 years, because I also think that climate change is the one great equalizer. आपने देख लिया हमारे यहाँ क्या होता है। इस दफ़ा कराची में जब सैलाब आए ना, तो तीसरे दिन सब इतने थक चुके हुए थे कि पजैरों के अंदर और शहजोर के अंदर भरे और फुल स्पीडों पे अपनी बस गाड़ियाँ उन्होंने निकाल दी सड़कों के ऊपर। गरीबों ने भी सब ने मिलकर 10-10 रुपये जमा किए, 1000 रुपये की शरोज़ बुक की, उसको भी पैसे चाहिए थे, और बस दौड़ाई उन्होंने सड़कों के ऊपर क्लिफ्टन और डिफेंस के अंदर, लोगों घरों में पानी फेंकते हुए। There was this class-based aggression because all their places were drowning. Now this is going to happen in every other city of Pakistan. We are headed for a war, but not with India, with ourselves. Because once climate change hits, once every ecosystem of agriculture and economy of daily living is going to be destroyed, फिर वही कैटवुमन और बैटमैन वाला सीन है जो उसने उसको द डार्क नाइट राइजेस के अंदर बोला था। क्या बोला? Lower down your hatchets and get ready because the war is coming.